سنائے ہمیں ادھر دلیل پڑھ کے سنائے منی خدا کے اوپر جی. اپنی زبان ہاں جی بند کر مرزائی اگلی کے بات آ بے جائے. چپ کر جائے مرزائی آئندہ اپنی بات کرنی ہے تو تمیز کے کر نہیں تو بند کر دے نیچے اتار دے تمیز کے دائرے میں بات کر مرزائی تیری کیا اوقات ہے مرزائی تیرا کون سا دین ہے یہ دین کی بات کر رہا ہے یہ جی نبی کی بات کر رہا ہے رضی نبی نے تو صاحب غیر ایک مسلم اچھا استاد رضی صاحب ایک لائیو شروع ہونے لگی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم دوستو، ابھی آپ یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر موجود ہیں اور ابھی یہ ہماری لائیو سوشل میڈیا کے 4 بڑے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر لائیو ہے. ٹک ٹاک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر. ٹک ٹاک کے اوپر بھی ابھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے اور اسی گفتگو کو ہم یوٹیوب کے اوپر بھی ابھی لا رہے ہیں. یہاں پر لائیو کال کا جو لنک ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں. اگر کسی نے کال کرنی ہو تو اس لائیو کال کے لنک کے اوپر کلک کر کے آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کی ایک ویڈیو ہے جس کا نام ہے قادیانی کیوں نہیں مانتے. آگے وہ سوالیہ نشان پڑا ہوا ہے اور یہ میں سکرین کے اندر آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس کا ٹائٹل اس ویڈیو کا. تو اور ساتھ مرزا مسرور کی تصویر بنی ہے اور لکھا ہوا ہے قادیانی خلیفہ اور ساتھ گنبد خضرا کو لگایا ہوا ہے اور ساتھ مرزا جی خود بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس ویڈیو کا پورا آپریشن ہم کریں گے کیونکہ مرزائیوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے امام مرزا انجینئر محمد علی جیلمی صاحب کے چھوٹے چھوٹے کلپ سناتے ہو، پوری بات سناؤ گے تو بات پھر سمجھ آنی ہے، جب تک پوری بات نہیں ہوگی تو بات سمجھ آنی نہیں ہے. تو اس گلے اور شکوے کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اب انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کی پوری ویڈیو کو ہم سنائیں گے اول سے لے کے آخر تک، اور اس کے اندر جتنے بھی پھر سوالات قائم ہوں گے وہ سوالات کریں گے، اور جہاں پر اس نے ڈنڈی ماری ہوگی تو اس کو بھی ہم ظاہر کریں گے اور لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے. تو یہ سلسلہ ہے اور اس میں مرزائیوں کو بھی قادیانیوں کو بھی ہم دعوت مکالمہ بھی دیتے ہیں کہ آپ آئیے آ کے اپنے امام انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب کو آپ ان کا دفاع کریں. یہ انہوں نے جو ڈنڈی ماری ہے، یہ جو انہوں نے قادیانیت کا دفاع کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اچھا ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ہم نے وہ ویڈیو لی ہیں کہ جس کے اندر خالص قادیانیوں کا دفاع کیا ہے مرزا جونیئر جیلمی. ویسے تو اس کی ہر ویڈیو کے اندر ہی وہ قادیانیوں کا دفاع کرتا ہے، قادیانیوں کی بولی بولتا ہے، لیکن ابھی بڑی وہ ویڈیو لے کے آ رہے ہیں کہ جس کے تھم نیل کے اوپر بھی قادیانی لکھا ہوا ہے یا مرزا مسرور کی یا مرزا قادیانی کی تصویر ہے. تو ان ویڈیو کو ہم پہلے لے رہے ہیں اور اس کے بعد جا کے دیگر ویڈیوز کو بھی ہم شامل کریں گے اس رات والی سٹریم کے اندر انشاءاللہ. تو اس ویڈیو کو چلاتے ہیں تھوڑا سا اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں، اور ساتھ ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہمارے دوست موجود ہیں. وہ چلے گئے ہیں وہ جو انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹ تھے بیٹھے. ہیلو، ٹک ٹاک کے اوپر جی استاد محترم ابھی دیکھتے ہیں ان کو ابھی. خود اتارا ہے کہ خود گئے ہیں؟ اتارنا نہیں ہے، ان کو کال پہ لیں. نہیں میں نے تو نہیں اتارا استاد محترم. ہاں صحیح ہے، کیونکہ انجینئر مرزا صاحب کے متعلق جب یہ ہم ویڈیوز کر رہے ہیں تو ان کے سٹوڈنٹ کا بھی یہاں پہ ہونا ضروری ہے. جب تک ان کے سٹوڈنٹ نہیں ہوں گے تو بات کیسے ہوگی؟ ہم نے جو سوالات کرنے ہیں وہ سوالات ہم کس سے جا کے کریں، کس سے ہم جا کے پوچھیں؟ ٹھیک ہے.
یہ مرزا جونیئر جیلمی جو ہے یہ قادیانیوں کا ٹاؤٹ ہے اور قادیانیوں کا لے پالک ہے اور قادیانیوں کا خود ساختہ ہے پودا ہے، قادیانی ساختہ پودا۔ تو بہرحال یہ ویڈیو ہے جی، ٹوٹل اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ہے 15 منٹ 25 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے، جو کہ مرزا جونیئر جیلمی کے چینل سے یہ ویڈیو لی گئی ہے، اور اس کی سپیڈ ہم 1.60 ایکس کر رہے ہیں تاکہ سپیڈ تھوڑی سی تیز ہو جائے اور ہم پھر روک کے اس کا آپریشن کر سکیں۔ اگر کوئی کال کرنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک آ گیا ہوگا، تو اس لنک پر کلک کر کے آپ بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں، اللہ کا نام لے۔ اچھا سر، ایک پرسیپشن ہے نارملی جو قادیانیوں کے بارے میں یہ کہ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی قرآن کو جیسا ہم نے سمجھا شاید تم لوگ نہیں سمجھ سکے ہو، ان کا یہ دعویٰ، اور وہ جب تبلیغ کر کے کسی کو کنورٹ کرتے ہیں قادیانیت کی طرف تو وہ بڑا اسٹرانگ ڈیبیٹر ہو جاتا ہے ایک طرح کا، ان کی جو بھی وہ سکھاتے ہیں جس طرح بھی وہ سکھاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا نالج اور اتنا یہ جو سوال کر رہا ہے یہ شخص، یہ دھوکہ دے رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور مرزا جونیئر جیلمی نے اس کے سوال کے اوپر کوئی گرفت نہیں کی، وہ گرفت ہم کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانی قرآن سناتے ہیں، قرآن سنا کے وہ لوگوں کو جب سمجھاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو وہ بڑا سٹرونگ ڈیبیٹر بن جاتا ہے۔ کوری چٹا جھوٹ، گپ ماری ہے، کہانی سنائی ہے، بہت بڑی کہانی، آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ یار آپ بھی تو سن رہے ہیں، ہمارے صاحبان، عمر بھائی مائک میوٹ کر لیں، آپ کا یہ رولا ختم نہیں ہونا، یہ وائس ڈبلنگ والا رولا نہ تو ختم ہونا ہے، تو نہ ہی یہ سر درد ہماری ختم ہونی ہے۔ تو بہرحال کیا کیا جائے، اب کال پہ آپ کو ہم لینا بھی چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ آپ ہمارے پیارے دوست ہیں، اور جب کال پہ آتے ہیں تو وہ یہ مسئلے ہوتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی بات، یہ کون سا سٹرونگ ڈیبیٹر بن جاتا ہے؟ کوئی آج تک بتاؤ، کوئی ایک بتا دو یار، پوری قادیانیت میں سے، ان کے تمام فرقوں میں سے جتنے ان کے فرقے ہیں، کوئی ایک، اینی ون، کوئی ایک بتا دو جی وہ بڑا ڈیبیٹر ہے، جی بڑا ڈیبیٹر، بڑی قرآن دی اس والی بات، بڑا مرزے کو سچا ثابت کرتا ہے، کوئی ایک بتا دو، ایک بتا دو، اینی ون۔ لیکن اس بے شرم انسان کو جس سے وہ سوال کر رہا ہے، یہ سائل، اس کی رتی برابر اس کی شرم، حیا، غیرت پہ کوئی فرق آئے یا کوئی ٹس سے مس ہو، نہ 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 نہ، وہ چپ کر کے سن رہا ہے، اور آگے سے اب کیا جواب دیتا ہے وہ بھی سنیے گا، آگے بڑھتی ہیں۔ سمجھنے کے باوجود ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی ہے کہ اجماع جو ہے امت کا، اس نے تو لوگ کافر ڈکلیئر کر دیا، تو آپ نے اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ وہ سمجھ کہ قادیانی کو تو امت کے اجماع نے کافر ڈکلیئر کر دی ہے، امت کے اجماع نے کافر ڈکلیئر کی، وہ تو 1974 کی اسمبلی نے کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اجماع امت کو بھی یہ مان رہے ہیں یہ لوگ، یہ مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے اجماع امت، اور ایک طرف اجماع کا یہ رد کرتے ہیں، پوری ان کی جو دکانداری چل رہی ہے اسی چیز کے اوپر چل رہی ہے کہ بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا کوئی اور، یعنی اجماع امت کچھ بھی نہیں ہے۔ اجماع امت جو ہے، اجماع امت کیا ہے، وہ بابا ہی کرتے ہیں نا، اور کن کا اجماع ہوتا ہے؟ اس میں کوئی خلائی مخلوق تو نہیں آئے گی اجماع کرنے کے لیے، وہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ اجماع کن کا ہوگا بھائی؟ کون سی مخلوق ہے جو اجماع کرتی ہے؟ اجماع امت خلائی مخلوق ہے، آسمان سے اترے گی؟ کون سی مخلوق ہے جو اجماع امت کرے گی؟ ہاں جی، ایک طرف جب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گاٹے فٹ ہو جاتی ہے کوئی چیز ان کے، تو اس وقت یہ اجماع امت کو بھی مان لیتے ہیں، بابوں کو بھی مان لیتے ہیں، سب کچھ، ہاں جی، یس سر یس سر یس سر، اور آگے پیچھے جو ہے انہی بابے بزرگوں کی دن رات 24 گھنٹے جو ہے نا وہ بدخویاں کرتے ہیں،
اور غلط زبان ان بابوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. اب جی مرزا جونیئر جیلمی صاحب بول رہے ہیں جی، یہ دیکھیے گا کیا بولتے ہیں. چھوڑ دیں. باقیوں کو سمجھ آ رہی ہے قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے. سمجھ نہیں آ رہی سارے کہ قادیانیوں کو تو آپ چھوڑ دیں. باقیوں کو سمجھ آ رہی ہے قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لو جی، پہلی چوری پہلے ہی پھا. ویڈیو کا ٹائٹل ہی قادیانی کیوں نہیں مانتے، اور تاثر یہ دیا ہے کہ یہ قادیانیت کے رد کے اندر، یا مطلب میں نے قادیانیت کے اوپر بول رہا ہوں. سوال کرنے والے نے بھی قادیانیوں کے بارے میں سوال کیا ہے، تو مرزا جونیئر جیلمی پہلا جو لفظ منہ سے نکلتا ہے وہ کہتا ہے قادیانیوں کو چھوڑو. دوسروں کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی دوسرے کون ہے؟ یہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی، یعنی مسلمان جو ہے، مسلمان لوگ ہیں، ان کی طرف وہ اشارہ کر کے کہتا ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے. قادیانیوں کو چھوڑ دو، یعنی جو سوال تم نے قادیانیت کے بارے میں کیا وہ چھوڑ دو، ان کو تو چھوڑ دو. یہی کام قادیانی کرتے ہیں، سیم یہی کام. وہ کہتے ہیں نا قادیانیوں کو چھوڑ دو، مرزے قادیانی کو چھوڑو. مرزے قادیانی کی تو بات کرنی ہی نہیں تم نے. آؤ ادھر آ کے قرآن حدیث کی بات کرو. آؤ آؤ آؤ، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. مرزے کو چھوڑو. مرزا قادیانی زنا کرتا ہے اس کو چھوڑ دو. مرزا قادیانی شراب نوشی کرتا ہے اس کو چھوڑ دو. مرزا قادیانی جو غلط کام کرے اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے جی، دیگر کی بات کرو ہم سے. یہاں پر میں اپنے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا، یوٹیوب پہ آ جاؤ یار. عثمان بھی اور ساری ٹیم یوٹیوب پہ پہنچ جائیں تاکہ اچھے طریقے سے گفتگو ہو سکے. یوٹیوب پہ آ جائیں بھائی. جی یہاں یوٹیوب پر موجود ہے آمنہ نوید، عمر بھائی ہیں، تو ہم عمر بھائی سے ابتدا کرتے ہیں. عمر بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ مائک اوپن کر کے آپ بول سکتے ہیں. جی شاہ جی، جس نے کہا ہے کہ قادیانیوں کو چھوڑ دیں. اب آپ دیکھیے اس بندے نے سوال پہلے کیا ہی قادیانیوں کا ہے، اور کہہ رہا ہے چھوڑ دیں. وہ اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ قادیانیوں سے آتے ہیں پیسے. اگر میں بولوں گا قادیانیوں کے خلاف تو پیسے آنے نہیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ دھندا ہے، گندا ہے پر دھندا ہے نا جناب. گندا ہی صحیح پر پیٹ تو پالتے ہیں قادیانی میرا. ہاں جی، اور قیامت کے دن ان کے وضو جو ہوں گے، وضو کے وہ چمک رہے ہوں گے. اس لیے انہیں چھوڑ دیں، ان کی بات نہیں کرنی. نہ 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 نہ، میرے باپ کی بات کیوں کرنی ہے بھائی؟ یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ انہی کا چھڑا ہوا میں چھوڑا ہوا چیلا ہوں. تو گرو کی بات کی تو گرو خفا ہو جائے گا. جو گرو خفا ہوا تو پھر پیسے نہیں آئیں گے. میری اتنی سی بات ہے. شکریہ. جزاک اللہ. جواد علی بھائی تشریف آئے ہیں جی، آپ کچھ فرمائیں. جی آپ فرمائیں حضرت. جزاک اللہ. ضمیر کیانی بھائی ہمارے آئے ہیں، بزرگ شخصیت. جی ضمیر کیانی بھائی، یہ جو کہہ رہا ہے جی قادیانیوں کو تو چھوڑ دو، سوال ہی جب قادیانیوں کے بارے میں ہوا ہے تو قادیانیوں کو کیوں چھوڑنا ہے بھائی؟ قادیانیوں کے بارے میں بتا. تو کیا ضمیر کیانی بھائی کیا فرمائیں گے آپ اس کے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جی قبلہ، یہ آپ قادیانی کی بات کر رہے ہیں تو میرا ادھر چلا گیا ہے. جو میری سوچ ہے اس کو، جو دید حق کتاب ہے، کہ یہ وہ بالمکھی تھے جو قادیان والے تھے. تو یہ بالمکھی تو نہیں ہے، یہ 20 کے بھی عقائد وہی تو نہیں ہے جو ان کے مولائی مرزا امام الدین کے تھے. تو وہ تو کچھ اور کیا کرتے تھے، ان کی پوجا بھی اور ہے. ان کا جو کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کے پھیرے اور مسلمانوں کا نکاح، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. بس ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے کسی کے ساتھ، بس جانوروں سے بھی بدتر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جونیئر جو مرزا جیلمی جونیئر ہے، یہ بھی وہ بالمکھی خاندان سے تو نہیں ہے کہیں. تھوڑا سا اس پر کچھ یہ تو کرنا پڑے گا. اس معاملے میں تو آپ کی معلومات زیادہ ہے تاریخ کے حوالے سے، ہسٹری کے حوالے سے، تو آپ ہی زیادہ فرما سکتے ہیں. جی دیکھیں نا کہ وہ جب ہم دیکھتے ہیں ان کو، یہ جو ہے، اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک اس پر آتا ہے سرچ انجن پر لوسٹ فاؤنڈ اسلام، تو جب اس کو کھولیں تو آگے سے یہ نظر آتا ہے کہ
ये वो सादिक कादियानी जो था, इसने ये शुरू किया था, ये बशीर कादियानी जानी के दौर में। तो फिर वो कहते हैं कि पहले जो थे 1400 साल पहले वो नबी आखिर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गोरू में से थे, वो यानी कि जो सफेद फार्म थे वो उनमें से थे। तो 14 साल बाद जी इधर पैदा हुआ अपना इधर कालों में से अली जा मोहम्मद, जिसको इन्होंने अपना प्रॉफिट बनाया। मर्जियों का दिया इन्होंने, हर मुल्क के अंदर इनके अपने अपने रंग हैं, चालें हैं, इनकी खिचड़ी बनी हुई है। इसी तरह फिर उनका एक गार्ड भी बना दिया फर्द मोहम्मद। तो फिर और चला जाए, एक और है इनका noislam.org, NOI.org, उसको देखें तो वहां पर जनाबे अली वो कहते हैं कि ईसा तो फोत हो गए और नया ईसा आ गया है इधर कादियान में ना, तो उसी को मानो, वो जो बताएगा वही चलेगा। फिर आगे चले तो फिर ये कहता है, ये सादिक कादियानी, इसको पता नहीं किसने बताया या इसको कैसे पता चला कि मगरब से ना सूरज निकलेगा, यानी कि सनराइज फ्रॉम द वेस्ट। तो उसने यहाँ पर एक बना डाला फिरका इसी चीज के नाम का, उसको कहता है कि मुस्लिम sunrise.com। जब वहां जाए तो आपको पूरी मर्जियत जनाबे अली वहां पर ना, जो कुछ भी इनका गंद है ना, वो सारा नजर आएगा। अब लोग पूछते हैं भाई सूरज मगरब से निकलेगा, ये तो चलो एक बात है क़यामत के वक्त की, तो ये तुम यहाँ पर इसके नीचे तुम ये क्या छुपा रहे हो, क्यों लोगों को पागल बना रहे हो? तो ये जो है ना, ये बस इनका ये है कि ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और ये जो है अपना ये बालमुखी जो है जेलम वाला, इसका तो हाल ही यानी कि ये तो बहुत ही आगे चला गया ना। ये कहता है जब आप 60 यानी कि कोई बंदा 60 साल का हो जाएगा, वो मिनी घाट बन जाएगा जनाबे अली, वो कुन फयकून की उसके आदत वो आ जाएगी, अथॉरिटी आ जाएगी, वो जो चाहेगा सो बनाएगा। और उसके अलावा ये कहता है कि गोल्डन कोट्स, यानी कि ये भी वो काणे की तरह है, ये कहता है कि ये मेरे ऊपर भी नहीं ये चीजें इनके इसके भी दावे भाई है, बल्कि ये तो वो मिर्जे काणे 26 वाले से भी काफी आगे चला गया है। इसने तो खुदाई का दावा कर दिया और पता नहीं क्या क्या इसने कर दिया है। और मुसलमानों के बीच छुप कर, ये नहीं बाहर आता, मिर्जे कादियानी की तरह ये भी छुपा हुआ। अगर आप ऐसा परफ्यूम लगाना चाहते हैं जो सुबह अपना ऑफिस आने उस से पहले जेलम आप के लगाएं और जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, 2 कॉलर आए हैं नीचे। उस्ताद मोहतरम जी जी कैनी साहब नीचे जरा 2 थोड़ा सा कॉलर आए टाइम हैं, दे। अगर इजाजत हो। जी बिल्कुल, कॉलर को लीजिए टिकटॉक के ऊपर। हमारी वेबसाइट में एली सेंट्स की आफ्टर डिस्काउंट आपको मिलेगा, आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद नहीं आता तो फिर उस्मान आपकी आवाज आ रही है भाई पीछे, मेरा कोई जरा एडिट नेट कर रहा स्लो हो गया है, कोई भाई नीचे से ना कॉलर उठाएगा। उस्मान के जो है ना जी टिकटॉक पर कोई कॉलर आए हैं, उठाएं। कॉलर कौन है भाई? जी उमर जट साहब, उमर भट्ट सर, अस्सलाम वालेकुम। जी भट्ट साहब माजरत जनाब नहीं जी। नहीं कोई बात नहीं सर, हाजिर। उस्ताद मोहतरम मेरा नेट अचानक स्लो हो गया है। जी कोई बात नहीं जी। जी उमर शाह साहब, भट्ट क्या साहब आपका ठीक ठाक है? जी, अल्लाह का शुक्र जी जनाब। शाह साहब, बेसिकली मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ मिर्जा साहब के हवाले से जी कि जितनी मैंने उनकी यानी कि सुनी है उनकी यूट्यूब पे या उनके टिकटॉक पे क्लिप, मुझे किसी भी किस्म में उनकी चीज़ में तजाज नहीं डाला गया। यानी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक उन्होंने हर चीज़ रेफरेंस कोट की है और बाकायदा तौर पे उन्होंने हर चीज़ का बताया भी है। तो जो आपने ये YouTube का सेशन रखा हुआ, पहले भी आपने रखा था, मैं उसके अंदर भी मैंने वो देखा था सर, ये जो उसने हर चीज़ में लाके डेंट डाल दिया ना सर, ये जो आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये काफ़ी नहीं है सर वो डेंट ख़त्म करने के लिए। वो ख़त्म ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जो आजकल की यूथ है ना सर, वो पढ़ी लिखी है सर,
वो बिल्कुल के कहते हैं बगैर के कहते हैं किसी तहकीक के या किसी चीज के वो पीछे नहीं लगेगी सर अब। बिल्कुल ठीक। अच्छा, थोड़ा सा मुख्तसर कर लेते हैं उमर भट्ट जी भाई। सर, जी आप सर। फरमा रहे हैं कि मिर्जा जूनियर जेल में जो भी बात करता है वो कुरान हदीस के मुताबिक करता है, ऐसा ही है? जी मैंने जो सुनी है सर उसकी कोई यूट्यूब बात पे नहीं, सारा कुछ मैंने सुना है। बिल्कुल ठीक हो गया। जी तो ये इंजीनियर मिर्जा साहब के वो रिसर्च पेपर है, आपने देखे हैं कभी? नहीं सर, रिसर्च पेपर मैंने कभी नहीं देखे। ओहो, तो उन्होंने वैसे तो कोई किताबें नहीं लिखी क्योंकि वो जाहिल आदमी हैं, लेकिन उसने रिसर्च पेपर नाम के कोई ये छापे हैं। ये देख लें, रिसर्च पेपर नंबर 1, 2, सर ये गूगल उस्ताद वगैरह में मोहतरम माजरत चाहता हूँ, उस्ताद मोहतरम मिर्जा इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये उम्मत के ऊपर मेरा एहसान है ये रिसर्च पेपर, और उमर भाई नहीं, कहते ये हैं मैंने गूगल पढ़ी के ऊपर मौजूद है सर। जी उनकी वेबसाइट जो उन्होंने अपने फिरके की वेबसाइट लॉन्च की है ना, अहले सुन्नत .pk, अहले सुन्नत .pk। हाँ जी, उसके अंदर मैं जरूर सर आज ही डाउनलोड करूंगा और मैं बकायदा तौर जी, पे कोई बात नहीं, आप बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी मेरे पास है यहाँ ये मौजूद। जी बेहतर हो गया। तो ये है कि इनका पहला रिसर्च पेपर है रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें। जी ठीक है, ये मौजूद है रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें। मैं ना ये एक काम करता हूँ कि इसको यूट्यूब पे, चूंकि ये लाइव चल रहा है, तो मैं यूट्यूब पर भी वो रिसर्च पेपर ओपन कर ही लूँ, कहीं से मुझे मिल जाए तो। एक मिनट रुक जाए, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, जी जी इट्स ओके। क्योंकि वो ना फिर चीज़ें कुछ तलाश करनी पड़ती हैं। मीम मिर्जा जेहलमी, ठीक है, आ गया। ये मिर्जा जेहलमी पर हम पहुंच गए और यहाँ पर उसके रिसर्च पेपर आ गए हैं, और इसमें रिसर्च पेपर है रसूलुल्लाह की आखिरी रसूलुल्लाह। हाँ ये आ गया भाई, ये रिसर्च पेपर है जी, और मैं यूट्यूब पर भी इसको लाइव कर रहा हूँ। चलिए, थोड़ा सा मेहनत की है, चीज मिल ही गई है, थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ता है ना भट्ट साहब। जी जी इट्स ओके सर। हाँ बिल्कुल, ये देखिए जी, ये रिसर्च पेपर नंबर 1 है, 12 दिसंबर 2016 को ये छापा गया है, और ये पहला है, बिल्कुल पहला, ठीक है। और 12 रबीउल अव्वल 1438 हिजरी को। अच्छा, क्लेम ये किया है भट्ट साहब ने कि इंजीनियर मिर्जा जो भी बात करता है कुरान हदीस के मुताबिक करता है, और आज तक मैंने कोई कुरान हदीस के खिलाफ कोई चीज नहीं देखी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये देखें जी, इसी रिसर्च पेपर में ये पहली कुरान की आयत इसने बयान की है, और वो है इजमाए उम्मत। ये नजर आ रहा होगा, इजमाए उम्मत को हुज्जत मानना दरअसल कुरान और हदीस का हुक्म मानने में ही दाखिल है। ठीक है, और ये सूरा अन-निसा की आयत 115 का उसने हवाला दिया है, और अल मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस नंबर 399 का हवाला दिया है। ये भट्ट साहब अगर आप मुझे निकाल के दिखा दें तो सुभान अल्लाह। शाह साहब बिल्कुल, मैं अभी तो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह मैं अभी घर पहुँच के मैं इंशाल्लाह ये डाउनलोड करूँगा, और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में पूरी इसकी सर्च जरूर करूँगा सर। बिल्कुल 2-3 दिन लग जाने। अच्छा चले, कोई बात नहीं, मोटी मोटी बातें कर लेते हैं ना। इसी के ऊपर पहली कुरान की आयत उसने पेश की है, इस रिसर्च पेपर की पहली कुरान की आयत, वो है नोट,
اللہ عز و جل نے علماء اور درویشوں کی تعلیمات کی بجائے اپنی وحی قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور یہ ترجمہ اس نے پیش کیا ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ یہ الحجر کی آیت نمبر 9 کا کیا یہ ترجمہ بنتا ہے؟ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، کوئی ایپ اوپن کر لیں بٹ صاحب۔ سر میں جس ملک میں ہوں نا، یہاں پہ 1000 ریال انہوں نے گراما دے دینا ہے، کیمرے میں آ گیا تو اوئے ہوئے اوئے ہوئے، ٹھیک ہے جی، تو اس اچھا لیے ایسا کر لیتے ہیں، یہ بھی کام میں ہی کر لیتا ہوں پھر، ٹھیک ہے۔ شاہ یہ صاحب آیت ہو گیا۔ یہ سورہ الحجر آیت 9 میں آن لائن نکالتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کام بھی ہم آن لائن ہی کرتے ہیں تاکہ سارے لوگ دیکھیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کے لیے ہم قرآن شریف اوپن کر لیتے ہیں۔ یہ تنزیل .net ویب سائٹ ہے، اور حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے مرزا نے؟ کون بول رہا ہے، کہاں سے بول رہے ہیں بھائی؟ میں بول رہا ہوں حضرت، کون میں بول رہا ہوں، کہاں سے؟ یوٹیوب سے کہ ٹک ٹاک سے؟ یوٹیوب سے۔ یوٹیوب سے۔ کیا نام ہے؟ میری ابھی توجہ نہیں ہے کہیں پر، میں ویب سائٹ کے اوپر توجہ ہے۔ اوکے اوکے، نام بتا کے بولیں گے نا تو مجھے پھر پتا ہو جائے گا، متوجہ ہو جاؤں گا نا میں۔ تو یہ دیکھیے تنزیل آپ کے سامنے میں نے اوپن کر لی، یہ سورہ الحجر، یہ 15 نمبر، ٹھیک ہے، یہ سورت میں چلا گیا۔ اس میں آیت کیا دی تھی اس نے؟ آیت تھی 9 نمبر، یہ 9 نمبر آیت یہاں سے میں نکال لیتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ آیت ہے جناب آپ کے سامنے ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ یہ وہ والا ترجمہ ہے جو کہ مرزا جونیئر جیلمی کے بقول تمام تراجم قرآن میں سے سب سے بیسٹ ترجمہ یہ ہے۔ بتائیے مجھے کہ یہ والی چیز قرآن کے کون سے لفظوں کا ترجمہ ہے کہ کدھر چلی گئی یہ آیت؟ ہاں، اللہ نے علماء اور درویشوں کی تعلیمات کی بجائے اپنی وحی قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ آیت آپ کے سامنے ہے بھائی، کھلی ہوئی ہے، سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ جی بٹ صاحب کوئی ہماری رہنمائی کریں، کوئی مہربانی کریں، آپ نے یہ خبر ہمیں آپ نے پہنچائی ہے، اب یہ جناب اس کٹے کو آپ نے کسی جگہ باندھنا۔ شاہ صاحب آپ بیسکلی میں آپ لوگوں سے سیکھنے آیا ہوں یہاں پہ، اس سے بھی سیکھا ہے، آپ سے بھی سیکھا ہے، ہم لوگ دین کے فالوور ہیں۔ میں وہ چاہتا ہوں دین جو ہمارے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، میں اس دین کے نقشے قدم پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، میں پہلے عمر فریدی میرا نام تھا پہلے، ٹھیک ہے جی، تو میں بیعت تھا سید منظور احمد شاہ صاحب ہیں کہ کتنے انتقال کر گئے ہیں ساہیوال میں، وہاں پہ، لیکن سر مجھے کچھ بھی ان سے سیکھنے کو نہیں ملا سر۔ آخر وہ ایک علم اکیڈمی کے ایک پورے اہل سنت کے ایک بڑے مشہور، پھر آپ نے ان کی بیعت توڑ دی، مختصر رکھیں ذرا، کیونکہ ہاں جی بالکل سر، بالکل بالکل بٹ بالکل صاحب سر، بیعت ختم کر دی سر، بٹ صاحب سن، ابھی کوئی بھی کالر ہے جی تو وہ سن لیں پہلے توجہ سے کہ ابھی 4 دنیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر لائیو ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور لوگ نا بور نہیں ہونے چاہیے، بات مختصر رکھ کے اس کو کلوز کیا جائے۔ جن کی بات آپ کر رہے ہیں نا، منظور شاہ صاحب ماشاءاللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یقین مانیے کہ مدینہ شریف میں رہا ہوں ایک عرصہ تک، تو ان کی کتاب ہے مدینہ الرسول، دیکھیے کبھی آپ نے؟ بالکل میں نے وہ دیکھی ہے سر، ساری پڑھی بھی ہے۔
अच्छा, उससे कोई नहीं, कुछ नहीं आपको मिला कुछ सीखने को? नहीं सर, जो उन्होंने किताब लिखी है और उनका अपना रंग वो बिल्कुल ऑपोजिट था सर। ओहो, तो जनाब मैंने उनके साथ ट्रेवल भी बहुत की है सर। ये सुने तो सही ना, सुने तो सही, ट्रैवल किए आपने। मैंने जनाब वो किताब से सबसे ज्यादा इस्तेफादा किया, और ऐसी इश्क भरी वो किताब है, और मैं कहता हूं कि उनके लिए, शाह जी के लिए मैं इतनी दुआएं कि उन्होंने फूल रो दिए हैं ना उस एक किताब। मुझे नहीं पता था कि ये मंजूर शाह साहब कौन है, वो एक किताब उनका तारुफ बनी। मैं ना ही तो उनको मिला हूं, ना ही उनकी जियारत की है, लेकिन उस शख्स की, उस हस्ती की वो एक किताब बताती है कि बहुत बड़ा आशिक है, बहुत बड़ा आशिक है। अच्छा, अगली बात अब करते हैं, क्योंकि मौजू से हम हट चुके हैं। ये बराड हम मंजूर शाह साहब के बारे में नहीं कर रहे, मिर्जा जूनियर जेलमी के बारे में कर रहे हैं। और बात आपने की थी, मैंने नहीं की। आपने कहा कि वो जो बात करता है कुरान और हदीस से करता है, मैंने आपके दावे को ये झूठा कर दिया है। अब क्या फरमाएंगे आप? सर आपने बिल्कुल ये जो मुझे दिखाया है, ये बात तो मैंने देखी है, लेकिन इंशाल्लाह आज मैं सर्च करूंगा, क्योंकि जब मिर्जा जेलम को सुनना शुरू हुआ सर एकदम चले वो तो जब आप करेंगे रिसर्च तो करेंगे, पता नहीं फिर जिंदगी में आपने मिलना भी है कि नहीं, क्योंकि मसरूफियत का दौर है तो नहीं, बंदा नहीं मिलते। अमूमी तौर पे लोग हमें कह जाते हैं, लेकिन मिलता कोई भी नहीं। तो अगर बिलफर्द वैसा ही हुआ कि मिर्जा जूनियर जेलमी ने झूठ बोला हुआ अल्लाह के ऊपर, ये पहले मैं एक बात सुना दूंगा आपको। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन काज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हजूर ने फरमाया, जिसने मेरी तरफ झूठ की निस्बत की उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नम में बना ले, वो जन्नमी है वो इंसान। तो ये हजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर झूठ बांधने का ये अंजाम है, तो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधने का क्या अंजाम होगा वो तो आपको पता भी नहीं है। ऐसे ही है। वो जन्नम के आगे और कौन सी चीज होगी, वो वाली उसको मिलनी है। समझ आई कि नहीं? जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधे कि अल्लाह ने ये कहा है, हालांकि अल्लाह ने तो नहीं कहा, अल्लाह ने तो नहीं कहा भाई। उधर मैंने आयत भी आपको सुनाई है, आयत निकाल के सुनाई, वो आयत वो बनती हुई नहीं, वो तर्जुमा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने आगे हवाला दिया हुआ है। तो ये कुरान है। हदीसें, अभी तो मैंने सिर्फ पहली कुरान की आयत जो इसने पेश की और पहली हदीस पेश की है, वो नहीं है, वहां पे नहीं है। ये आप शायद ये देख रहे हैं, ये हाईलाइट की हुई है चीजें, ये कुछ भी नहीं है, ये हवाले है कुरान और हदीस के हवाले हैं। ये पीले पीले, ये आपको ये ऑरेंज कलर के नजर आ रहे हैं हाईलाइट जी, ऑरेंज कलर के, ये वो वाली चीज है। ये पहले सफे की ये गिरफ्त की है हमने, ये इल्मी तौर पे पकड़ा है इसको कि ये झूठ बोला, गप्पे मारी हैं इसमें, कहानियां सुनाई हैं, अगली चीजों की तो बात ही छोड़ देना। ये पहले सफे का ये पहले सफे का ऑपरेशन है। शाह साहब, जो हमारे मौलवियों ने हमें कहानियां सुनाई हैं वो नहीं, वो कहानी भी वो बात, वो नहीं, एक मौजूद जब पकड़ ले उससे हटना नहीं चाहिए। देखिए इतने लोग सुन रहे हैं, वो ऐसे ही वो कहेंगे यार ये भट्ट साहब क्या कभी उधर जा रहे हैं कभी ऐसे। एक मौजूद ये आपने जो बात की थी कि कुरान और हदीस से वो बात करता है, अब इस बंदे के बारे में आपका क्या मौकफ है? अब क्या सर, इस बंदे के बारे में ये मौकफ है, मैं बिल्कुल, आपसे मेरी मुलाकात हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रॉड पे आता हूँ। एहसन रजा कादरी साहब यहाँ पे ऑनलाइन होते हैं, माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रही हैं ये भी, मुझे ठीक है, लेकिन इनकी मेहनत से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने सवाल ये किया है कि मिर्जा जूनियर जेलमी को भी आपने कहा है कि वो कुरान और हदीस से बात करता है, मैंने उसका कुरान और हदीस आपके सामने पेश कर दिया है, वो कुरान हदीस की नाम लेता है, लेकिन कुरान हदीस में ऐसा कुछ नहीं होता, झूठ बोल। सर वो मैंने आपकी जुबानी सुना है ना, हमारा दीन भी जुबानी पहुंचा जरूर है हमारा। ये ले आपके सामने है, आप ये सर यहाँ पे उल्टा दिख रहा है ना, स्क्रीन में उल्टा दिख रहा है। वो उल्टा दिख रहा है, ये तो कोई बंदा यार अभी ये काम करे, कोई मौजूद है? ये स्क्रीन शॉट इसका जो है ना लगाए, मैं ग्रुप के अंदर भेज रहा हूँ,
यहाँ आप टिकटॉक भेजिए, पे बिल्कुल मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल सही नहीं ये होगा गिला तो भी मैं खत्म लानत डाल नहीं के नहीं जाऊंगा गिला उसके ऊपर। गिला नहीं, गिले तो हमने गिले और शिकवे तो खत्म करने हैं ना। गिले जी शिकवे बेहतर जब हो होगा। गए तो काम तो खराब हो गया ना। गिले शिकवे तो खत्म करने हैं हमने। तो मैं इसका ये पहला सफा ये भेज रहा हूँ, तो कोई शख्स ये वही ग्रुप के अंदर आ गई है भाई, ग्रुप के अंदर आ गई है। जमील जल्दी उठा मिंट मारी दा हुंदा। आहा सही हो गया। स्क्रीन वड्डी करो, इन स्क्रीन वड्डी कर ते ला सु तस्वीर हुने ए गो ते ए मैदान। अच्छा, यहाँ हमारे ब्राड में बैठी हुई हैं आमिना नवीद। आमिना, आप क्या फरमाएंगी? कोई थोड़ी सी बात कर ले उतनी देर टिकटॉक के ऊपर। वो ये स्क्रीन बड़ी कर दें यार, स्क्रीन बड़ी करें इनकी। जमील साहब स्क्रीन बड़ी करें। ये ले जी, स्क्रीन पे लग गया जनाब। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम। बेटा एक मिनट ठहर जाए जरा, ये भट्ट साहब से बात हो जी जी। भट्ट साहब लग गया जी। चलो वो आप पीछे चले गए। भट्ट साहब किधर साड़ी बराड़ ही ना ले उडियो। नहीं नहीं सर, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मेहरबानी बिल्कुल कर, मैं मेहरबानी जूम करियो। करके पढ़ रहा हूँ सर। माड़े बंदे आ भाजी, जूम करके पढ़ रहे। पढ़ ले। इधर इधर भी हम दिखा दें भाई, हमारी कौम भी देखे ना। इधर आप जूम करें, इधर हम जूम करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। मेरी वीडियो तो फिर रह गई ना, वो तो बढ़ गई। बंदा की करे, जिसका ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ। एक बात फरमा तो अगर इजाजत हो आपकी। जी कौन बोल रहे हैं? जवाब बोल रहा हूँ। जी जवाब भाई, वीडियो से। जी जवाब। हजरत मैं फरमाना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा झूठा आदमी है कि ना इसने रूपा पे भी झूठ इसने बांधे और अल्लाह पे भी इसने झूठ बांधे। जी तो कोई सोचने कि शरी क्या होना है आगे। कुछ भी नहीं जी, ये झूठ बोलता है, गप्पे मारता है, कहानी। यही तो ऑपरेशन कर रहे हैं हम, इसी चीज का तो ऑपरेशन करे। फराडिगा आदमी है, मिर्जा कादियानी की तरह है, उसकी तलीमात को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जैसे भट्ट साहब उसकी गिरफ्त में आ गए ना, उसके चुंगल में फंस गए हैं, ऐसे ही मिर्जा कादियानी ने कुछ बोले वाले मुसलमानों को अपने चुंगल में फंसाया था। तो इन लोगों को हमने निकालना है उस चुंगल से, क्योंकि मिर्जा कादियानी के दौर के अंदर भी अगर हम होते तो हम उनको निकालने की कोशिश करते। तो ये बात है जी। भट्ट साहब कोई फैसला फरमाएं। शाह साहब सिर्फ एक मिनट, मैं बस लास्ट लाइंस में हूँ जी। अच्छा, लास्ट लाइन पे पहुंच गए। अभी तो पहली पे हम थे, आप लास्ट पे पहुंच गए। भट्ट साहब अब पहली पर ही रहे, लास्ट पे तो बहुत कुछ है। ये पूरे सफे को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक हो गया शाह साहब, फिर मैंने शुरू में तो पढ़ लिया सर। ये बात तो गलत इसने लिखी हुई है सर। शाह साहब क्या गलत लिखी है सर? ये जो इसने ट्रांसलेट यानी कि इसका तर्जमा लिखा हुआ है ना सर, वो सही नहीं है। लेकिन गलत मैं है ना? गलत है ना? ठीक हो गया ना? सच को सच और गलत को गलत करना चाहिए। बिल्कुल। ये मेरी अब तस्वीर बड़ी करो भाई, हसन रजा, मेरी तस्वीर अब बड़ी करो। मैं डायरेक्ट भट्ट साहब से मुखातब होना चाहता हूँ। ठीक हो गया भट्ट साहब? जी शाह तो साहब। अब भी कहेंगे कि मिर्जा जूनियर जेल में कुरान दी से बात करते हैं? नहीं सर, मैं फिलवक्त तो अभी बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि वो करता है, क्योंकि इसलिए मैंने ये पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन मैं अब मज़ीद इसके बारे में पढ़ूंगा और बाकायदा तौर पे जो मैं लोगों को बताता हूँ मिर्ज़ा इंजीनियर के बारे में, इसके अंदर तो वो गलत पाया गया है। मैं डाउनलोड करता हूँ घर जाके अपने, और बाकायदा तौर पे मैं लोगों को कहूंगा कि नहीं यार ये ऐसा नहीं है। ये भट्ट साहब मुख्तसर अब करूंगा, मुख्तसर, बड़ी माजरत क्योंकि वक्त शॉर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ऐसे बंदे होने चाहिए समझने वाले जी, सारे सुनने देखने वाले। ऐसा इंसान को ऐसा होना चाहिए। कोई शख्सियत हमारे नजदीक माना खेज नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे नजदीक कोई माना नहीं रखती। हमने हकायक के ऊपर जो है ना वो देखना है कि हकायक क्या कहती है।
तो भट्ट साहब फराख दिल इंसान है, उनको जब हकीकत का पता चला है फौरी तौर पे उन्होंने रजू कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगली बात थोड़ी सी ये करनी है और फिर बात को कंटिन्यू करते। उस्मान यार इधर आ जाए, अल्लाह के बंदे यूट्यूब पे आ जाओ। उस्मान, आसफ भी नहीं आया, मैं कैसी है सारी टीम उधर पहुंचो, यूट्यूब ते पहुंचो। बंदे साडे सुते ने, बिल्कुल सुते ने। खाना ना यकीन मनो मेरे सामने पे है वो ठंडा होता है। हाँ जी, अभी मैंने खाना भी खाना है। उस्ताद तो मोहतरम बरात आप आके जी जी उस्ताद मोहतरम 1 मिनट सिर्फ मुझे दे दें, मैं फ्री होने वाला हूँ, बस मैं 1 मिनट सिर्फ। बरात टोरो ना अगे यार, फिर बरात टोरो, या इत्थे ही टोर लो या उधर आ जाओ, यूट्यूब ते आ जाओ। बरात टोरो थोड़ा जी अगे। जी जमील। अच्छा, अपना किबला मुफ्ती साहब, जी जी ये जो बालमुखी है वो भी कहते हैं कि हमारे बड़े खुदा है ना, मिनी गॉड्स हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, क्योंकि एक खुदा वो काम नहीं ना कर सकता, इतने सारे काम होते हैं, कोई जेलों में होता है, कोई कादियान में होता है, कोई चिनाब नगर में होता है, तो हमने छोटे छोटे बनाए हुए हैं। तो ये मिर्जा जूनियर जेल में जो है ये बालमुखी है, 100% बालमुखी है, क्योंकि देखिए ना ये कहता है मिनी गार्ड बन जाएंगे। तो जो मिनी गार्ड बन जाएंगे भाई वो तो हिंदुओं के होते हैं, वो तो जिन्होंने बालमुखी साहब ने ये रामायण लिखी हुई है। तो ये देखिए हमारे मुसलमानों को यहाँ से पकड़कर ये कहाँ पर ले जा रहा है, बिल्कुल वो इसी तरह जिस तरह वो काबुल से बंदा जा रहा था हज करने के लिए और वो किसी मर्जी का देनी के आगे चढ़ गया, तो उसने उसको वहां से पकड़ा, जनाबे अली उसको चक्कर देते देते सीधा वो कादियान ले गया, और वहां पर वो कहता है उसको, वो खाना मिर्जा के तुमने आज इधर ही कर लेना है। तो जब वो वापस किया तो वो अपने बादशाह को कहता है कि उधर उधर आ गया है ईसा, उधर आ गए हैं कादियान में। तो उन्होंने कहा कि वो कौन है, उसको इधर लाओ ना। तो फिर वो जो उधर उसको उन्होंने, वो बादशाह सलामत ने उसको उड़ा दिया था। तो ये बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है मुसलमानों के साथ ये बंदा जो है, ये बालमुखी मिर्जा जूनियर जेलमी कादियानी ऑफ जेलम। जी जी जज़ाकल्लाह। जी जमील अमान बराड़ आगे संभालिए भाई, माइक ओपन कीजिए। पता नहीं की मसला है भाई। आमिना बात कर लें आप। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम। जी उस्ताद मोहतरम, मैं कल भी हाजिर हुई थी, तो इसकी नादानी पे अफसोस ही होता है, इस मिर्जे की नादानी पे बहुत अफसोस होता है। एक दफा एक साइड पे कहता है मैं कुरान दी से बात कर रहा हूँ, और एक साइड पे सहाबा की तौहीन करता है, औलिया अल्लाह की तौहीन करता है, अल्लाह पाक की तौहीन करता है, अंबिया इकराम की तौहीन करता है, माँ बाप की तौहीन करता है। इसकी बस मैं सोचती हूँ कि इसे अल्लाह ताला ने पैदा क्यों किया। नहीं नहीं सिखना ना 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 कहता है, लेकिन ना ना ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। अल्लाह पर इतराज नहीं बेटा करते, ये कुफर है कि अल्लाह ने इस चीज को फलां चीज को पैदा क्यों की है। बिल्कुल अल्लाह पर कोई इतराज नहीं करते। हाँ, इससे तौबा करें और आगे बात करें। जी मैं लानी तो बकरती हूँ, अल्लाह पाक मुझे माफ फरमा, मुझसे कुफर सज्जत हो गया। अल्लाह पाक ने सच्ची तौबा करती, मेरी तौबा कबूल फरमा। आमीन। उस्ताद मोहतरम, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं इसकी वीडियो सुनती हूँ ना, तो यकीन जाने दिल फट जाता है कि हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम पे बातें बकवास करता है। फिर उस्ताद मोहतरम, मैं सुबह भी बात हो रही थी घर में वालिदा के साथ, ये मैं डिस्कस कर रही थी, दर्स देती हूँ घर, तो बात हो रही थी कि देखिए कि जिनका सदका हम खाते हैं, ये जहन्नम में लोग
का सदका खाते हैं, उनकी गुस्ताखी करते हैं। मैंने कल भी अर्ज किया था, ओ करके दो अगर हुजूर ना होते ना तो ये कायनात ना बनती, अगर हुजूर ना होते कायनात ना बनती। मदार शरीफ का वाक़या है ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम गए अर्श पे तो हर चीज रुक गई। गोया की जान है वो जान की जान है तो जान है, बिस्तर भी रहा गर्मा, लोटे से पानी भी टपकता रहा, सब कुछ ही कुंडी भी हिलती रही। जब आप अलैहिस्सलाम अर्श से आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए रब से मुलाकात करके वापस आए तो फिर से सारा जहान चल दिया। तो गोया की जान है वो जहान की जान है तो जहान है। अरे कल के अंदर तुम्हें ये नहीं पता कि हुजूर सल्लल्लाहु के सदके हम इस दुनिया में आए, हुजूर के सदके हमें माँ बाप मिले, हुजूर के सदके हम इस दुनिया में जी रहे हैं। हम एक लुकमा भी खाते हैं ना तो हुजूर का सदका खाते हैं, हुजूर का सदका खाते हैं। तो उस्ताद मोहतरम मैं यही अर्ज करना चाहूंगी कि इनको सोचना चाहिए, और मैं तमाम मुसलमानों को कहूंगी जो इसके जान में फंस चुके हैं, खुदारा अपनी इस्लाह कीजिए। हमारा प्लेटफॉर्म खुला, इधर आके अपनी इस्लाह कीजिए, कुरान हदीस के जो इसने फराड किया है उससे बाहर निकल आई है। तो मैं यही अर्ज करना चाहूंगी उस्ताद मोहतरम, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बुस्तामी साहब। जी हजूर वाला शान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अन्ना बेटी ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं और माशाल्लाह अल्लाह पाक इसके इल्म में इजाफा फरमाए। तो यही है कि ये मिर्जा इंजीनियर जो कुफी अल्फाज बोलता है तो ये काफिर है, तो जो इसकी सपोर्ट करता है तो जाहिर सी बात है कि वो भी काफिर ही होगा। तो जो भी जब ये मिर्जा कादियानी की तो बात ही नहीं करता, कभी इसको देखा ही नहीं है कि कभी इसने मिर्जा कादियानी के हवाले खोले हों, मिर्जा कादियानी को इसने उजागर किया हो कि मिर्जा कादियानी ऐसा था। मिर्जा कादियानी के ये बकवासियात हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी बातें सुन के तो आगे करता है। ये जो किताबें इसने रखी हुई हैं इमामों की, और बुखारी शरीफ रखी हुई है, इमाम हम्बल की माशाल्लाह किताबें रखी हुई हैं, ये तिरमिज़ी शरीफ रखी हुई है, ये सब इसका फ्रॉड है, दजल है। जो भी ये हदीस पेश करता है वो हदीस गलत और सहीफ होती है और वो पेश कर देता है। उसको जो भी इसका को तर्जुमा करेगा, इसकी जो बात नहीं हदीस गलत नहीं, हदीस के तो अल्फाज कुछ और कह रहे होते हैं, ये तर्जुमा कुछ और कर देता है। जैसे कुरान की आयत अभी देखें कुछ और कह रही है, इसलिए तर्जुमा कुछ और कर दिए, वो ये करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि कुरान देखे ना, एक छोटी सी बात है, देखे मगर हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। वो कहता है कि कादियानियों ने जो तर्जुमा किया है वो ठीक है, 1400 साल से कुरान पाक आ रहा है और हमें तर्जुमा पहुंच रहा है। तो ये हरामजादा आज से 100 साल पहले जो मिर्जा कादियानी ने जो तर्जुमा किया था खत्म नबूवत का और खातमुन नबीयीन का, उसको दुरुस्त करार दे रहा है। और जितने भी मुहद्दिसीन मुहक्किकीन ने तर्जुमे किए हैं खत्मुन नबीयीन के, वो इसको गलत करार दे रहा है। और खास तौर पर मैंने एक बहुत बात आज ग्रुप में भी मैंने नोट की है, इनके जो फॉलोअर्स हैं, जैसे मिर्जा कादियानी को हम पढ़ते हैं तो वो उलमा को गालियां देते थे, उलमा को वो बात करते थे कि उलमा के नजदीक ना जाओ। इसी तरह उसके जो आगे झूठे खलीफे जो इन्होंने बनाए हुए हैं मिर्जा कादियानी ने, वो भी यही तालीम देते कि उलमा के पास नहीं जाना। तो यही बात सेम इस मिर्जा इंजीनियर के फॉलोअर्स यही बात करते हैं कि उलमाए दीन के खिलाफ हैं, और वो कहते हैं कि उलमा दीन के पास नहीं जाना आपने। आज एक बंदे के बात थी तो आज उसने इकरार किया कि मिर्जा इंजीनियर ने किसी मदरसे से नहीं पढ़ा तो उसने दुकानें बंद कर दी हैं। मैं उसको बहरहाल तकाजा करता रहा कि जो दुकानें बंद की हैं, जो शटर बंद किए हैं, वो दिखा तो दो
کوئی ثبوت تو پیش کرو نا. مگر یہ ثبوت پیش نہیں کر سکتے, یہ صرف اور صرف بکواسیات کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو اتنے ایسے ہی ایک نعرہ لگایا ہوا ہے کہ دکانیں بند, دکانیں بند. بھائی کون سی دکان بند ہوئی ہے ابھی تک ہمیں بتا دو. بھائی کون سا فرقہ جس میں 4 مکاتب فکر ہے, ٹھیک ہے, آگے سے ان کے فرقے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ فرقے ہونے ہیں. تو یہ خبیث الخبائث انسان کہتا ہے جی دکانیں بند ہو گئی ہیں. کوئی تو بند ہمیں دکھاؤ تو صحیح. بھئی اہل تشیع بھی ہیں, اہل دیوبند بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, اہل سنت بھی ہے. پہلی بات حبیب صاحب, والی بات کرتا حبیب صاحب وہ مکاتب فکر ہے, فرقے نہیں ہیں. بالکل فرقہ تو سب کا ایک ہی ہے, اسلام فرقہ ہے, اس ایک فرقے کے آگے مکاتب فکر. جی بالکل بالکل. اس نے یہ فرقوں کی بات کرتا ہے تو اس کا اپنی جو اس نے لکھا ہوا ہے اہل سنت pag.com, جو اس کا خود فرقہ ہے, اس نے بنایا ہوا ہے. تو یہ خود بنا کر تو فرقوں کی بات کرتا ہے کہ جی فرقے فرقے فرقے. یہ دجل کہتا ہے نا, یہ فریب دیتا ہے لوگوں کو بس, اور کچھ بھی نہیں. جی شکریہ حضور والا شان. جزاک اللہ. جمیل اوان بھائی آ گئے ہیں. جمیل اوان بھائی آ گئے ہیں. ہلو آصف بھائی آ گئے ہیں. عثمان بھائی آ گئے ہیں. نہیں استاد جی کوئی بھی نہیں ہے ادھر, سارے غائب ہو گئے. اب ہوگا. اچھا جی, عمر بھائی آپ بات کر لیں. میں کھانا کھا رہا ہوں تو بس میں تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں تو بس میں تھوڑی دیر میں آمنہ سسٹم نے اچھی باتیں کی ہیں, اور بستامی انکل نے بھی اچھی باتوں کی طرف, ہمیں اہم باتوں کی طرف کیا ہے, پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. فرقوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں تو اس کے بعد اگلا کوئی حل بھی تو بتاؤ نا. دیوبند کی دکان بند, اہل حدیث کی دکان بند, بریلویہ کی دکان بند, فلاں کی بھی دکان بند, اس کی بھی دکان بند, سب دکانیں ہو گئی ہیں بند. اب دکانیں بند ہیں, کاروبار چلانا بڑا ضروری ہے. اب مرزا جی وہ دکان چلانی کون سی ہے؟ آپ کی دکان پہ آتے ہوئے ڈر لگتا ہے بھیا ہمیں. وہاں ترجمہ بھی غلط ہے, حدیث پڑھنی غلط ہے, اور ترجمہ کرنا اس کا وہ غلط ہے. ابھی ایک بھائی صاحب آئے تھے اور وہ آپ کا مرزا جی کہہ رہے تھے بڑا اچھا آدمی ہے, قرآن حدیث سے بات کرتا ہے. ابھی مفتی صاحب نے دکھایا اس کو ایک تمہارا وہ ریسرچ پیپر, ریسرچ تو کیا خاک تو نہیں کرنی ہے, تمہارا وہ پمفلٹ دکھایا اسے, تو اس بیچارے دیکھتے ہی بول دیا غلط کا ہے جی. 1 منٹ میں ہونا مکر گیا, 1 منٹ میں. اسے کہتے ہیں ڈیمیج ہیز بین ڈن, اسے کہتے ہیں دکان بند. پتر دکان تیری بند ہوئی ہے, وہ آج ہمیں کہتے دکھائیے لائیو دنیا کو, دیکھیے نہ تجھے قرآن دیکھے پڑھنا آتا ہے, ترجمہ تیرا غلط, حدیث تجھے نہیں آتی, فقہ تجھے چڑھے, صرف و نحو میں تو پیدل ہے, منطق تو خیر تیرے جیسوں کے ساتھ اوپر سے گزرتی ہوگی, بلکہ نام بھی نہیں آتا ہوگا. تو یہ دکان کون سی بند کی ہے بستامی انکل؟ میں یہ پوچھتا ہوں کون سی دکان اس نے بند کی ہے؟ جی وہی بات ہے نا جی, کہ یہ بکواس کرتا ہے. اور آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ بھائی دکان وہ کھلی دکھاؤ تو صحیح. تمہاری دکان کھلی ہے جس میں ایک گھٹیا سا دوست تم سودا بیچ رہے ہو, جس میں تم کہتے ہو کہ زانوں کو عربی میں پٹ کہتے ہیں. یہ ہے تمہاری عربی. قرآن پاک واقعی اوپر سے دیکھ کے پڑھنا تو آتا نہیں ہے, تو کہتے زانوں کو عربی میں پٹ کہتے ہیں. اور آگے سننے والے میں حیران ہوں کہ ان کے کان بہ رہے ہیں, آنکھیں بند ہیں, تو وہ سوچ نہیں رہے, سمجھتے نہیں ہیں یار یہ کیا کر رہا ہے. تو کبھی میں نے آج ہی ایک ویڈیو ویسے میرے پاس موجود تھی تو میں اس میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں 2 جواب یعنی کہ دجل کیا ہوا ہے, 2 باتیں کی ہیں. جیسے ہی مرزا قادیانی کی 2 زبانیں تھی, اور اس میں یعنی کہ ایک طرف تو وہ کہتا تھا کہ خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, حوالہ موجود ہے, ٹھیک ہے.
दूसरी तरफ ही आगे जाके वो कहता है नहीं नहीं मैं ही मोहम्मद हूँ, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिका, मैं ही शीश हूँ, मैं ही इसहाक हूँ, मैं ही यकूब हूँ, मैं ही बल्कि इवन यहाँ तक कि वो कहता था कि मैं ही अल्लाह हूँ। और इसी तरह इसके मुंह में भी यही है। मैं हैरान हूँ इस बात पर कि आप कोई भी वीडियो इसकी उठाकर देख लें, इसकी कोई भी इसने कभी हवाला लगाया हो मिर्जा कादियानी का। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पे, ये वाद हमारा प्लेटफॉर्म है जहां पर हवाले लगते हैं और हम दलील से बात करते हैं, हवालों से बात करते हैं, मिर्जे के हवालों से बात करते हैं। तो ये कादियानी को सपोर्ट करने वाला, ये कादियानी का खबीस पौधा लगा हुआ है, ये वही है जिसकी लॉबी जो है ना, ये वो यहूदी लॉबी है इसके पीछे। और मैं समझता हूं कि मुसलमानों को इस पर आवाज उठानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो आगे इसके एकेडमी में बंदे बैठे हैं वो मुलहिद बैठे हुए हैं, वो कादियानी बैठे हुए हैं। और बड़ी अक्सर बात आपने नोट की होगी, जब भी आप किसी का मर्दई से बात कर रहे होंगे तो कादियानी आ जाएगा, या कादियानी से बात कर रहे होंगे तो पीछे मर्दई आ जाएगा उसकी सपोर्ट करने के लिए। लानत है तुम पर भी बेशुमार लगातार तेज रफ्तार अपने आप को मुसलमान कहते हो। कहता है कि भाई अदाए वजू चमकते होंगे जैसे मुसलमानों पे चमकते होंगे, इसी तरह कादियानियों के भी चमकते होंगे। इसका मतलब है तुम कादियानियों को मुसलमान कर रहे हो ना, ये जी मुसलमान है वो तो काफिर है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज से 1974 की असेंबली में से वो उनको करार दिया गया, तो क्या असेंबली ने नहीं करार दिया था, उलमाए दीन ने किया था, उलमाए हक ने किया था। तमाम मकातब जितने भी लोग थे उन्होंने ये मोहर लगाई थी इन काफिरों के ऊपर, इस काफिर और दज्जाल के ऊपर। जी अभी सब जज़ाकल्लाह। टिकटॉक पर कोई दोस्त आए हैं, यासर भट्ट साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, किबला कैसे हैं, खैरियत है? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आगे भट्ट साहब तशरीफ लाए थे, वो फरमा रहे थे कि जो मैंने कुरान और हदीस देखा है, वो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि उनको कितना कुरान और हदीस का इल्म हासिल है खुद, कि वो क्रॉस चेक कर सकें। यहाँ तो फॉलोअर्स की ये हालत है कि बेचारों को संजय का नहीं पता और वो कुरान और हदीस के मतलब क्रॉस चेक करने का दावा करते हैं। तो ये तो एक क्वेश्चन है कि आप पहले खुद बताएं आपकी अपनी काबिलियत कितनी है कि आप को पता चल रहा है कि ये बंदा दजल नहीं कर रहा, ये फ्रॉड नहीं कर रहा, ये धोखा नहीं दे रहा। बात ये है, इधर देखे भट्ट साहब, आप भी भट्ट हैं, वो भी भट्ट थे। ऐसा बात ये है कि यही बात आप उनके मुंह के ऊपर करते ना तो हो सकता है वो नाराज हो जाते। अक्सर तो हमने यही देखा। बात करेंगे आप, हालांकि आप समझाने की नीयत से कर रहे होते हैं, एक बसा औकात कोई सवाल कायम किया जाता है, वो समझाने की नीयत से होता है, इफ़हाम तफ़हीम के लिए होता है, लेकिन अगला बंदा नाराज हो जाता है। ओ हो, फिर मोटी मोटी गालियां सुनने को मिलती। समझ आई कि नहीं? जट साहब की आईडी से आए हैं, कौन है? कासिम जट तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल शाजी, आपने ठीक बोला है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे ग्रुप में एक मर्जी साहब आए थे और गालियों की बारिश फरमा कर गए हैं बस। अच्छा, वो तो रोजाना मिलती हैं हमें सुनने को गालियां। यहाँ यूट्यूब पर तशरीफ लाए हैं अब्दुल हबीब मदनी साहब। जी जनाब, अब्दुल हबीब मदनी साहब बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम। आपका ना अब्दुल हबीब भाई नेट कमजोर है, आपको परेशानी वो नेट की वजह से हो रही है, माजरत के साथ आप कॉल काटिए, दोबारा तशरीफ लाइए। जुहेब अशरफ भाई हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैं मिर्जा साहब के कुछ फॉलोवर की थोड़ी सी एक दो बातें करना चाहता हूँ उनके बारे में। करें जी करें। हाँ जी, मसला ये है कि आम तौर से वो कहते हैं कि फिरका परस्ती हनफी शाफी मालिकी हम्बली अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद, वो ऐसे ऐसे ताने देते हैं कि आप एक दूसरे से लड़ते हो, हमने ये फिरका परस्ती कम की है यानी खत्म की है। लेकिन एक मसला उनको ये बात समझ नहीं आती है कि
जो चीजें हमें हमारे इख्तिलाफात थे हनफी शाफी मालिकी हम्बली के, चाहे 10 थे 12 थे 13 थे, अगर मिर्जा साहब के आने से उन इख्तिलाफ में कुछ कमी आती तो कहते कि उन्होंने फिरका परस्ती काम की है। लेकिन जिस मसले में हम इत्तिफाक करते थे हनफी शाफी मालिकी हम्बली या अहले हदीस, वो तमाम मुत्तफिक आला मसले को भी मिर्जा साहब आके उनमें इख्तिलाफी बातें छेड़ती है, जिस तरह कादियानियों के काफिर होने का, इसी तरीके से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के मुतल्लिक, उनकी जंगों के मुतल्लिक सुकूत का, ये तो हमारे यहाँ इत्तिफाकी मसले थे। इन इत्तिफाकी मसले में भी मिर्जा साहब ने इख्तिलाफ पैदा किया। अब वो क्या किस मुंह से कह सकते हैं कि हमने फिरका परस्ती को कम किया? वो चाहिए ये था कि जो हमारे आपसी इख्तिलाफात थे उनको कम करते, जिस पर हम मुत्तफिक है, जिस पर हमारा इत्तिफाक है, उन्होंने आके उनमें भी इख्तिलाफ कर दिया। तो उस एतबार से उन्होंने फिरका परस्ती को ज्यादा, अगर उनके कहने के मुताबिक फिरका परस्ती को ज्यादा उबारा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी रोशनी। दोस्तों ने ये हमारा खत्म नबूवत फोरम का लोगो लगा लिया है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपनी तस्वीरें इधर उधर की पर्दों के अंदर छुपने की हमें जरूरत ही नहीं। किसी को कुछ कहना कहे, कोई मसला नहीं। तो इन चीजों की परवाह किए बगैर एक आप हजरात ने ये काम करना है कि अपना नाम असली लिखना है, नाम जो है ना फेक नहीं होना चाहिए। और दूसरा काम ये कि लोगो, ये आप टिकटॉक के ऊपर भी ये लोगो लगाएं, यूट्यूब के ऊपर भी लगाएं, व्हाट्सएप के ऊपर भी लगाएं, फेसबुक के ऊपर भी लगाएं, ट्विटर पर भी लगाएं, हर जगह आपकी आईडी पर ये लोगो होना चाहिए। ये लोगो होना चाहिए, हर एक का होना चाहिए। ये सिर्फ जो है ना ये मुफ्ती बशर शाह का ये लोगो नहीं है कि ये सिर्फ इसकी इजाजत मुफ्ती बशर को ही है और किसी को इजाजत नहीं है, नहीं, हर एक ने लगाना। समझ आई कि नहीं? तो YouTube के ऊपर भी जो दोस्त सुन रहे हैं उन प्यारे प्यारे दोस्तों से ये गुजारिश है कि ये लोगो भाई लगाएं। खत्म नबूवत फोरम का जो लोगो है ना वो अपनी अपनी आईडीज के ऊपर लगा लें। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, वीडियो आगे सुनते हैं जी, अब ऑपरेशन शुरू करते हैं। ये भी है। जो मुसलमान रोजाना 5 दफा पढ़ रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बाहर निकल के हर बाबे को पुकार रहा है, जिसको कुरान का पहला सफा जो रोजाना कम से कम 7 इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और बाहर निकल के वो बाबों को, मैं कह रहा हूं नमाज के अंदर बाबों को पुकार रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के आगे भी तो थोड़ा सा पढ़ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते के ऊपर चला दे। सीधा रास्ता कौन सा? बापों का रास्ता, बापों के रास्ते के ऊपर चला दे मुझे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो अनअमता अलैहिम जब तुमने कहा अल्लाह जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ है उनके रास्ते के ऊपर मुझे चला दे, तो वो इनाम याफ्ता लोगों की पूरी लिस्ट देता है वो अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर। वो कहता है, ये देखिए मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, ये देखिए सूरह अन-निसा आयत 69 फरमाता है कि अनअमल्लाहु अल्लाह ने अलैहिम, अल्लाह ने जिनके ऊपर इनाम किया है वो कौन कौन से हैं वो लोग? मिनन नबीयीन, पहला बाबा नबी, व सिद्दीकीन, दूजा बाबा सिद्दीकीन, व शुहदाई, तीजा बाबा शुहदा, व स्वालिहीन, और सारे ही मुसलमान। अब ये व स्वालिहीन के अंदर तमाम मुसलमान शामिल हो गए, जो भी अल्लाह रसूल को मानते हैं वो सारे के सारे वो बाबे। वो कहता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते के ऊपर चला दे।
सीधा रास्ता कौन सा? इन बाबों का रास्ता, बाबों के रास्ते के ऊपर चलाना ही मुझे। लोगों को क्यों झूठ बोल रहे हो, दजल कर रहे हो, फ्रॉडिये इंसान है? लोगों को ये कह रहे हो कि नमाज के अंदर ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और बाहर निकल के बाबों को की पूजा कर देते हैं। वो मैं कहता हूं नमाज के अंदर ही बाबों को अहमियत ही नहीं रखता। तेरे अकीदे के मुताबिक तो ये शिरक होना चाहिए कि ये शिरक अल्लाह खुद अपने हाथों से करवा रहा है। आगे बढ़ते हैं जी। अब ये फ्रॉडिया आजम जनाब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब आगे क्या फरमाते हैं, सुनिए। फर्ज रखता हूं मैं तो वो पढ़ता है एक दफा, और 17 ही तकरीबन सुन्नत नवाफिल मदद नहीं है। पूरी जिंदगी उसको समझ नहीं आती, सिर्फ समझ आई जे मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी नू ते या मिर्जा जूनियर जेलमी नू, और किसे नू कख कंडा नहीं जे समझ आया। भाई सुन लो, भाई सुन लो, वो सुन लो मुसलमानों, सिर्फ ये नमाज और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ ये दो मिर्जों को, यही बातें मिर्जा कादियानी करता था और यही बातें मिर्जा जूनियर जेलमी का। वो कहता है तुम लोगों को कुरान की समझ ही नहीं है मुसलमानों। कुरान ने मुझे नबी बनाया है, रसूल बनाया है, तो तुम मेरी आंखों से पढ़ ही नहीं रहे कुरान को, तुम्हें तो समझ ही नहीं आया किसी को। वो वादे तौर पे कहता है मिर्जा कादियानी। यही काम मिर्जा जूनियर जेलमी ने पकड़ ली है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब या तो यूं रहमती का तकीद है। तो सब कादियानियों को भी इसी तरीके से नहीं समझ आ रही, उनको उनके बाबों ने पढ़ा दिया है ना, तो वो बाबी बने ना, किताबी नहीं बने ना, इसलिए नहीं समझ आ रही। कादियानियों पे मेरा यूट्यूब पे क्लिप है। अच्छा, वो भी बाबी और ये मुसलमान भी बाबी, तो इन दो बाबियों के अंदर फर्क क्या हुआ? ये पहले भी हम इस चीज का ऑपरेशन कर चुके हैं कि ये तमाम सुन्नी शिया वाबी देवबंदी को कादियानियों की लिस्ट के अंदर शामिल करता है कि सारे ही एक है। यानी इसके नजदीक अगर कादियानी काफर है तो ये सारे ही काफर है। तो पीछे बच गया एक मुसलमान, ये अकेला एक राफजी मुसलमान बचा है बस, और कोई दुनिया के अंदर माफी हा के अंदर कोई मुसलमान है ही नहीं। बस ये हजरत साहब बचे, मिर्जा जी प्लम्बर जी। कादियानी फिरका के लोगों को कादियानियों को दावत इस्लाम, जिसमें कादियानी फिरका, कादियानी इन लोगों को दावत इस्लाम है। सुन लिया, ये कादियानियों को फिरका समझता है मुसलमानों का, ये कादियानियों को फिरका समझता है कि मुसलमानों का ये एक फिरका है। ये बार बार हम बता चुके हैं कि ये कादियानियों को मुसलमान समझता है, ये कादियानियों को मुसलमान समझता है कई दफा, और ये वीडियो भी इसकी कादियानियों के दिफा के ऊपर मुश्तमल है, ना कि कादियानियों के रद्द के ऊपर। आगे सुनते हैं। मैंने पॉजिटिवली उनको दावत पेश की है इस्लाम की, और ये जिस वीडियो का कह रहा है ना कादियानी फिरका को दावत इस्लाम, उसका हमने पूरा ऑपरेशन किया है हमारे YouTube चैनल खत्म नूर टाइम्स के ऊपर। वो ऑपरेशन वाली वीडियो मौजूद है, जाके देखिए। मैं कहता हूं इस वीडियो का इसने बड़ी जगह उसका ऑपरेशन किया था, समझ रहे हैं आप? वो उसी तरीके से ही दावत फिरका को दावत इस्लाम वाली वीडियो के अंदर कादियानियों को समझाने का, उसी तरीके से बस कादियानियों को दावत दे सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो उसमें कौन सा तरीका था जी प्लम्बर साहब? उसमें कौन सा तरीका था? अच्छा जी, उसमें तरीका ये था कि कादियानी भाइयों, कादियान नहीं, उनको तो यूद सारा से साहब का गड़ा हुआ। आगे सुने जी। कादियानियों को सिर्फ दावत इस प्लेटफॉर्म से दी जा सकती है, क्योंकि बाकी सिर्फ दुनिया के पुत्र मुसलमान बचे ही तुम है, या तेरे चमचे खड़चे मरजाई बचे ने, बस हो गए मुसलमान है ही को नहीं तुम्हारी नजर से कोई है जे ते दस दे।
बस एक प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म फिरके का नाम प्लेटफॉर्म रख दिया जी इसने। ये नया नाम है, नया नाम प्लेटफॉर्म, मेरा प्लेटफॉर्म की है तेरा फिरका। तू नया एक फिरका, एक नवी दुकान, नवी नवेली दुकान जी जेलम के अंदर खुली है। सीधी तरह कह लोगों को कि मैंने एक फिरका लॉन्च किया है, मेरा प्लेटफॉर्म मेरा प्लेटफॉर्म। जाहिल इंसान। ये अली साहब को आए हैं जी टिकटॉक के ऊपर। जी जनाब बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा गौर से सुन रहा हूँ अच्छे तरीके से, और आपके जो एतराज़ात हैं और इख्तिलाफ है उनसे मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ जी। तो बेसिकली आप मिर्ज़ा को मुसलमान समझते हैं या काफिर समझते हैं? हाँ, काफर तो छोटी चीज है, हम तो काफरों से भी बदतर समझते हैं। यानी आप समझ लें कि मिर्जा कादियानी को हम काफिर समझते हैं ना, तो मिर्जा कादियानी से भी बदतर काफिर इसको समझते हैं। मिर्जा कादियानी से भी बदतर, यानी जिसने जिसने नबी होने का नबूवत का दावा किया उससे भी बदतर आप एक ऐसे इंसान को उससे भी बदतर जो जिसने खुदाई का दावा किया, जिसने खुदाई का दावा नहीं, खुदाई का दावा कहाँ से कर दिया सर उसने? वो नहीं खुदाई का, आपको नहीं पता? नहीं, कौन सा खुदाई का दावा किया है? वो जन्नत में जो मिनी गॉड की बात कर रहे थे आप? हाँ जी सर वो तो एक समझदार के लिए समझने वाली बात है। समझने वाली जन्नत में अल्लाह ताला थोड़ा सा रुकेंगे, जी थोड़ा सा रुकेंगे, वीडियो जरा चला ली जाए जी ताकि दोनों ही बैठ के सुन लेते हैं जी, तो फिर वो समझने वाली बात आप हमें समझाएं जी। क्या ख्याल है? जी बिस्मिल्लाह। ठीक है ना? हाँ, वो समझने वाली बात आप समझाएंगे तो समझ आनी, ऐसे तो नहीं समझ आनी। क्या ख्याल है? और आप समझाएंगे, हम समझेंगे, और भी दुनिया बड़ी बैठी हुई है समझने वाली, तो वो भी सारी दुनिया समझेगी। ये मैं वीडियो शेयर कर दूं, सुनिए। एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूं। तो ये सवालात नोट करते जाइएगा क्योंकि ये ना हो कि बाद में आप गए हो वो सवालात नोट करते जाइएगा। पहला सवाल ये है कि ये अल्लाह ने ये ऑफर कहाँ पे करवाई है कि मुझे 60 साल की उम्र दे दो तो मैं मिनी खुदा बना दूं। ये ऑफर आपने नहीं सुन लेना, और सुन तो ले अली साहब, ऐसे ना करें, सुन लें पहले, सुन ठंडे तहम्मुल से सुनते हैं पहले। ओके जी। तो ये अल्लाह की जो ऑफरें हैं ना, ये हमें वही के जरिए से मिलती हैं जो नबी के सीने के ऊपर नाजल होती हैं, वो वही। तो वो फिर ऑफर हमें बताता है, कौम को बताता है, अपनी उम्मत को बताता है कि ये देखो जी ये ऑफर अल्लाह ने दी है। तो अल्लाह की ऑफरें तुरात के अंदर हमें मिलती हैं, या ज़बूर के अंदर मिलती हैं, या इंजील के अंदर मिलती हैं, या कुरान के अंदर मिलती हैं, या हदीसे कुदसी के अंदर मिलती हैं। ठीक है, अच्छा ये तो था पहला सवाल। अच्छा चले पहले इसी सवाल को क्लियर कर ले, फिर आगे बढ़ लेते हैं। ये ना हो कि अग्गा दौड़ पीछा चौड़ी हो जाए। जी देखें, आपने मेरी जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ एग्री तो करना नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग सुन रहे हैं उनको सुनाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो मिनी गॉड या इसका जो उसने बात की है उसका ये मतलब नहीं है अल्लाह ताला कि हम, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला के सामने एज ए शरीक आ जाएंगे। मतलब ये है कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है। ये सवाल नहीं सर, जवाब तो करने देना आप किसी। जी नहीं ना, सवाल मेरा ये है नहीं, जब आप मैंने सवाल गंदम की आप जवाब बताएं क्या सवाल है? हाँ, नहीं चने का जवाब चना ही होना चाहिए। वो जब गंदम की बजाय चना आ जाएगा फिर काम खराब हो जाना है। जी बिस्मिल्लाह। तो मुझे बोलना पड़ेगा ना कि भाई आप अपना वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं और हमारा। आपने मिनी गॉड वाला सवाल किया ये नहीं ये सवाल मैंने नहीं किया। आपने सुना ही नहीं सवाल? जी बताएं। ओए होए मर थां ते गए जनाब। हाँ जी, पूरी रात रोंदे मरिया कोई भी ना। ओ ठीक है, तुसी सवाल तो दोहराओ ना, की सवाल है? और गल है अली भाई कि पूरी सारी स्टोरी मैनू फिर दोबारा सुनानी पैनी। पहले तो ये वीडियो सुने ना, दोबारा सुने। ओ मैं सुन ली है सर, वीडियो सुनी है सर। नहीं ना सुनी ना जी, तुसा कख भी नहीं, तुसे लाला जी किथे पहुंच गए, गल कोई होर सी, तुसी लै गए किधरे होर। ये सुने जरा दोबारा।
एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूं। सवाल ये था कि अल्लाह ने ये ऑफर कहाँ पे करवाई है कि मुझे 60 साल की उम्र दे दो तो मैं तुझे मिनी खुदा बना दूंगा। ये ऑफर कहाँ पे? ऑफर अच्छा, वो तुरात में है, जबूर में है, इंजील में है, या कुरान में है, या हदीस कुदसी में? ये है सवाल। अच्छा, उम्मीद है बात समझ आ गई हो। मिनी खुदा का सवाल नहीं मैं कर रहा, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ ये ऑफर कहाँ पे है। ऑफर का मतलब ये नहीं होता अल्लाह ताला ने कोई सेल लगाई हुई है, अल्लाह माफ करे ये ऑफर देगा। अल्लाह ताला के जो कलाम है उसमें से आपको जो इक्तसबात हैं उसको निकाल के उसका मफहूम ये होता है कि जब अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक आप जिंदगी गुजारते हैं, अपनी जवानी, बुढ़ापा, बचपन अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं और अपने नफ्स पे कंट्रोल करते हैं, इसका मतलब है आप अल्लाह ताला से एक डील कर रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी आपके हवाले करता हूँ और क़यामत वाले दिन जो आपने वादा किया है उसके मुताबिक मुझे जन्नत में जगह दीजिए। ये है ऑफर। अब उसको आप ऑफर के नजरिए से देखें या आप अतिउल्लाह व अतिउर रसूल के नजर से देखें, वो सेम बात है। इसमें अल्लाह ताला माफ करे कोई ऑफर का लफ्ज तो नहीं आएगा ना तौरात, ज़बूर, इंजील या कुरान में। बात कर लिया आपने तो बता दीजिएगा भाई, मेरी कंप्लीट। जी जी। अच्छा, वैसे बड़े इत्तेफाक की बात है कि आज मैंने जो थंबनेल बनाया है ना अपने यूट्यूब चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर, तो वो भी वो एआई की पिक्चर है कि जिसमें मिर्जा जूनियर जेलमी साहब अपनी अकेडमी में बैठ के तकरीर कर रहे हैं अपने मर्जियों को और छोटे छोटे खुदा उनको बना रहे हैं। तो वो छोटे छोटे खुदाओं की वो ना इमेज बनाई है। अच्छा चले, अच्छा ये अली भाई के बात ये है कि सवाल का जवाब आपने नहीं दिया मियां। क्या आप कह रहे हैं कि नहीं ये मफहूम समझा जाता है? मफहूम तो नहीं, हुक्म यही है कि असरीह ला युकबल तबील, कलमा सरी की तवील नहीं होती, उसको अपनी सराहत के ऊपर रखा जाता है। ये कायदा कुली है, कलमा सरी को अपनी सराहत के ऊपर रखा जाता है, उसकी तवील नहीं करते। इसकी मैं मिसाल आपको दूंगा, आपको अगर ये चीज नहीं समझ आई तो मिसाल दे दूं। जी जी बिस्मिल्लाह। जी जी हाँ, उसका ये है कि जैसे मैं कहूं कि मिर्जा जूनियर जेल में है, कुत्ते का बच्चा है, तो अब अली भाई आप क्या कहेंगे कि मैंने इंजीनियर मिर्जा को गाली दी है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। गाली है ना? जी जी बिल्कुल गाली है ना सर, बता रहे हैं अपनी। ठीक है, अब मैं कहता हूं जब आपने कहा है जी मुफ्ती साहब आप गाली दे रहे हैं, तो मैं आगे तवील ये करता हूं कि नहीं, असल में ना मुराद ये है कि वो अरशद मुगल जो है ना मिर्जा जूनियर जेलमी का बाप, वो मोहल्ले का बड़ा वफादार इंसान है और वफादारी की निस्बत चूंकि पाई जाती है कुत्ते के अंदर, तो इस खसलत की वजह से मैंने मिर्जा का जूनियर जेलमी के वालिद को कुत्ता कहा और चूंकि मिर्जा जूनियर जेलमी उस कुत्ते का बच्चा है तो इसलिए मैंने इसको कुत्ते का बच्चा कहा। सर आप क्या मेरी इस तवील को सुन तो लेना अभी अभी बात मुफ्ती साहब मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, वे बीच में बोलना है तो आपकी मर्जी है। जी जी बात साहब आप खामोश हो जाए, सुने उसको पहले, सुनने के बाद जब आपको कहेंगे तब बोले। जी बिस्मिल्लाह जी करें। ये यूट्यूब पर जमीर कैनी भाई बैठे हैं तो वो कह रहे हैं। अच्छा बात यह पहले सुन लेते हैं। देखिए मैंने आपकी इजाजत लेके बात कर रहा हूँ, आपसे पहले इजाजत लीजिए, हर चीज आपसे पूछ के कर रहा हूँ। आप बीच में टोकेंगे, वो इतनी दुनिया सुन रही है तो वो बैठ के सारे वो उलझ जाएंगे कि यार देखो कैसा बंदा है कि खुद इजाजत दे के खुद बीच में टोक। मुफ्ती साहब ठीक हो गया। अच्छा बात ये मैंने जानबूझ के ये मिसाल दी है सिर्फ आपको समझाने के लिए, और मुझे पता था आप नाराज होंगे और आपको नाराज करने के लिए ही मैंने ये मिसाल दी है कि ताकि आपको समझ आ जाए मेरे भाई, क्योंकि मैं आपको मुझे आपसे बड़ा दर्द है। मैं चाहता हूँ आप जन्नत में चले जाएं। आमीन। मैं चाहता हूँ मैं अपने साथ आपको जन्नत में लेके जाऊं। मैं आप उम्मते मुहम्मदिया के एक फर्द हैं, मेरा दर्द है कि उम्मते मुहम्मदिया जन्नत में जाए, क्योंकि ये शिरक अकीदा है, ये अकीदा शिरक है। अगर इस अकीदे के ऊपर आप मरेंगे तो मुशरक होके मरेंगे, अबदी अबदी जहन्नम आपका मुकद्दर होगी, क्योंकि मिर्जा जूनियर जेल में तो हो गया है मुशरक। ये अकीदा शिरक है मेरे भाई। अच्छा। ये अकीदा शिरक है। तो ये है कि बात ये है कि आगे वीडियो चलाने की मजीद गुंजाइश कोई बाकी नहीं रहती।
अगर आप कहेंगे तो मैं चला दूंगा। अभी तो मैंने आपका समझ ले, एक मिनट सुने तो सही। 1 मिनट 40 सेकंड की ये ऑडियो वीडियो है और पहले 8 सेकंड मैंने चला के तो स्टॉप की है। तो आगे बात करेंगे तो तकरीबन इसके अंदर मोटे मोटे 5 इतराजात कायम होते हैं इस एक क्लिप के अंदर। 1 मिनट 40 सेकंड के क्लिप के अंदर 5 मोटे मोटे इतराज हैं। तो ये मुख्तसर यही है मेरे भाई, ये अकीदा शिरक है। इस अकीदे का कोई आप अगर करेंगे दिफा, अगर आप करेंगे तावील नहीं कर दिफा के लिए आया हूं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी मौका ही थी। नहीं दे रहे, मैं दिफा के लिए आया हूँ। आप देखें तकरीर कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे मुबल्लिग हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आपका सिर्फ यही एतराज है कि उसने ये बात कर दी। आपके और क्या एतराज आते ताकि मैं उसका जवाब दूं आपको? जी कर ले बात, मैंने फ्री किया हुआ है आपको। जी जी कर ले बात। नहीं, आप मुझे बताएं ना, सिर्फ यही एतराज है मिर्जा जूनियर पे आपको, या सवा किसी बंदे को वो खुदा की तरफ नहीं के साथ खड़ा नहीं करता मदद के लिए, या कहूँ या अली मदद मुश्किल कुशा। यार अली अल्लाह ताला के मौजू से हट गए हैं। देखिए बट साहब मौजू से हट गए हैं। मौजू अली भाई आपका क्या एतराज क्या है सर? आपका ये एतराज है? ये आप फर्क कुरान के अंदर है, हदीस के अंदर है, कहां सर पर है वो ऑफर दिखा दें। अगे उत्थे ही बैठे हो, अगली गल करो। नहीं अगे नहीं करीदा, अग्गा दौड़ पिछा छोड़ते नहीं ना। जवाब दे देता है, गलत गल है। वे लो फिर नहीं कोई जवाब नहीं, जवाब जवाब दिता जे कि जवाब ही समझो। मतलब ये जवाब वो है आपका अली भाई, जवाब ही समझो जी, जवाब ही जैसा सर देखो ये वो वाला जवाब दिया। जवाब नु एक्सेप्ट करो या ना करो, तुसी अगे वधो। मैं तो मेरी जड़ी मतलब कौन सा जवाब कहाँ पे भाई? हवाला मैंने तो नहीं सुना यार, किसी और ने सुना है भाई? जमील भाई या खुरम भाई बैठे हैं, किसी ने कोई हवाला सुना हो? इन्होंने तुरात का हवाला, जबूर का, इंजील का, कुरान का या हदीस कुदसी का कोई हवाला दिया हो जी? वहां पे वो ऑफर लिखी हुई है सर। आप फिर वही बताएगा यार? नहीं इसका तो एक मिनट मुझे अपने दोस्तों से पूछ लेना अली भाई, एक मिनट जरा अपने दोस्तों से पूछ लो। कुरान और हदीस का कोई हवाला नहीं इन्होंने दिया, ये बस अपनी तरफ से ही गप्पे सुनाई जा रही। अच्छा मैं समझा था शायद मैंने ही नहीं सुना, तो ये तो जमील भाई ने भी नहीं सुना। सर आपको भाई आपने सुना क्या एक ही बात पकड़ के बैठ गए आप? बंदे भी आपको सुन रहे हैं, आप उनका भी टाइम जाया कर रहे हैं। कोई और इतराज करे मैं उसका जवाब दूं आपको? एक कर दिया आपने। उनको नहीं मानना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं मानना, ये वो कह रहे हैं। ओए वो अल्लाह के नबी थे, जाहिल इंसान है भाई। आराम से बात। ओए ना भाई एक मिनट ओए एक मिनट भाई अली साहब देख लें। जी जी आप मुझसे उम्र के अंदर भी छोटे हैं, तो मैं आपको इज्जत एहतराम से बुला रहा हूँ। और आपके बाप की सुने तो सही ना, आपकी बाप की उम्र के हैं जमीर कियानी साहब जो अभी बोल रहे थे। आई एम सो सॉरी। आपको पता है? देखें आप किस तरीके से कितनी ज्यादती कर रहे हैं आप। सर मैं वो हमारे हम सब के रिस्पेक्टेबल हैं, हम बड़ी उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे सर, बहुत शुक्रिया। माजरत चाहता हूँ सर। ठीक हो गया। अच्छा आप अली भाई फिर थोड़ा सा रुके, तो हमने क्योंकि ब्राड कर रहे हैं एक स्पेसिफिक एक वीडियो है मिर्जा जूनियर जेलमी की, तो उस वीडियो का हम जवाब दे रहे हैं, तो वो फिर वीडियो हमारी रह जानी है। ठीक है अभी तो समझ लें कि वो वीडियो मैंने तो दिफा का मौका ही नहीं दिया। हाँ वो उधर ही रहना है। कोई बात नहीं। तो ये थोड़ी सी वीडियो आगे चल तो जाए, हो सकता है कोई और चीज ऐसी आ जाए कि जो आपसे पूछनी पड़े। क्या ख्याल? जी ठीक है आप कैरी ऑन करें, मैं इंशाल्लाह पे ज्वाइन करता हूँ आपको। जी बहुत शुक्रिया जी मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको।
साथ ही रहे, आमीन लाइन जी। पे रहे। मैं आपको लाइव ही दोबारा रहे, आप ज्वाइन करता हूँ, जाइएगा। मैं थोड़ा चाय शाय पी लूँ ना, मैं सुन रहा हूँ आपको, नीचे ही हूँ। अच्छा जी, ठीक हो ठीक हो। उनके अपने बुजुर्ग बाबों ने वो भूल खिलाए हुए हैं कि वो कादियानियों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, और ये प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। मुझे इस्लामाबाद से एक भाई ने एक दफा फोन किया, कोई 8.5 पहले की बात है, उस्मान भाई के फोन पे इन्होंने बड़ी बात करवाई, तो मुझे वो बड़े फख्र से बता रहे, मैं जी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक फेसबुक का अकाउंट चला रहा हूँ कादियानियों के खिलाफ, एंटी, यानी मैं ना खत्म नबूवत के हाथ में ना मेरा वो पेज चल रहा है। तो मैंने कहा यार वो खत्म नबूवत पेज नहीं होगा, वो एंटी कादियानी पेज होगा। कहता जी ये कैसे? मैंने कहा खत्म नबूवत में तो वो बात कर नहीं सकता मेरे साथ। हेलो, सुन लिया जे लोधी भाई जी उस्ताद। गंगोई साहब। हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं कर सकता जी, खत्म नबूवत दा काम कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं जी, है जी, बस एक बंदा जे। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਚਨੇ ਹੀ ਵੇਚਨੇ ਆ। बिल्कुल। वो देखें, इसके अलावा कौन है जो कादियानियों के जाए वजू चमका दे? ऐसा ये पालशिया पाया गया। लोधी तू भी बंदा कमाल है यार, माशाल्लाह, बड़ा मिठा है। उस्ताद जी देखे ना, अल्लाह वो कहता है ज़िबिया खा लो, कादियानी का कोई मसला ही नहीं है, कहता है जानवर ज़िबा करो जाके उसके घर खा लो, कोई रोला ही नहीं कहता। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੁਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬਣਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਂਝ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਮੇ ਕਾਬਾ ਨਾਲ। ਮਾਮੇ ਕਾਬਾ, अच्छा जी। मुर्शद भाई आए हैं जी, मुर्शद साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है, सेहत तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह पाक। अल्हम्दुलिल्लाह सही। करे करे बात आप जारी, हम सुन रहे हैं। अच्छा जी, सुने जी। पॉइंट मेरा नोट करना है। जी जी। अच्छा, वो कहता है क्यों? मैंने कहा इसलिए कि खत्म नबूवत पे वो बंदा बात करेगा कि खत्म नबूवत पे जिन जिन लोगों ने डाका मारा है वो सब के सब लोगों को गलत कहता हो, जबकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में तो सिर्फ एक मकतबा फिक्र को गलत कहना ही फैशन बन चुका है। हेलो, कादियानी मकतबा फिक्र भी बन गया भाई। पहले फिरका सी कादियानी, तो अब कादियानी मकतबा फिक्र बन गया है भाई। यार ये किधर के हैं? वो आए थे अली साहब। अली साहब, ये छोटा सा क्वेश्चन आ गया भाई कि कादियानी मकतबे फिक्र है कि फिरका है, कोई फैसला करके हमें बता दें। ये राना मून साहब आए हैं, शायद ये मुश्किल हमारी हल कर दें। जी राना मून साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह जी, कादियानी ना ही मकतबा फिक्र है, ना ही कोई मसलक है, ये सिर्फ एक कल्ट का नाम है। बिल्कुल ठीक। और मैं एक बात बताना चाहता था, ये अक्सर एक लफ्ज इस्तेमाल करता है एंटी कादियानी। ये वही लफ्ज है जो आपसे अक्सर बात करते हैं, वो एक कादियानी मतलब ना तलत मलक, जो आपको अक्सर एक लफ्ज सुनाता है कि जी आप बोझ अहमदियत में ये कर रहे हैं। हाँ। ये वही लफ्ज है, ये एंटी कादियानी का मफहूम यही बनेगा, बोझ अहमदियत। ओहो राना मोन, अल्लाह तेरा भला करे, मैनू अज समझ आई है इस लफ्ज दा। अच्छा। मतलब क्या हुआ कि वो ही बोली कादियानियों वाली बोली ना। ठीक है। कादियानियों वाली बोली मिर्जा जूनियर जेल में बोल रहे, बिल्कुल ठीक है। बल्ले भाई बल्ले। तो ये यूट्यूब पर भाई हमारे कॉलर आए हैं राना मून साहब की आईडी से, तो वो बात कर रहे थे, वीडियो आगे सुने। और जब आप उनके पास जाएंगे ना सर, वो आपके दूसरे मुकाबले फिक्र के बुजुर्गों की बात आपके सामने रख देंगे, और वो देख अब समझ आ गई। कादियानी मकतबे फिक्र है, और वो कादियानी दूसरे मुकातबे फिक्र की बातों को रखे। मतलब क्या हुआ? जिस तरह का के कादियानी एक मकतबे फिक्र है इस्लाम का, उसी तरह के मुकातबे फिक्र ये सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी है। अब समझ आई है? अब समझ आ गई है? ओए ओ सारे मरजइयो नेड़े लगो, मरजइयो कुछ ते दसो यार मरजइयो। उस्ताद जी ये दावत इस्लाह कादियानियों को ये दे रहा है कि जब तुमने मुसलमानों से बात करनी है ना, तो इस तरीके से करनी है, ये दावत इस्लाह उसकी
हैं कि तुम्हें तो बात भी नहीं करनी देती उन्होंने भी प्यो बन रहा ना जी। ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ तो रद्द हो रहा जी भाजी, बहुत रद्द हो रहे हैं। ये तो तुम इस्लाम का रद्द कर रहे हो। ये जो तू नारा लगाता है द डैमेज हैज बीन डन, ये तो इस्लाम का डैमेज हैज बीन डन कर रहा है। तू तो मामा बन के बैठ गया इस्लाम का। तू कल्ला कल्लम कल्ला कुर्सी ते बैठ के मैं जे मुसलमान या जेड़ा मैनू मन्नेगा ते ओ मुसलमान जे, जेड़ा मैनू नहीं मनदा ते ओ बस ऐ होई जे ओ भाभी सुन्नी शिया देओबंदी ओ बाबे ने ते ओ उन्हों का खुदा कोई और मुशरक ने बित्ती ने काफर ने। चल लख दी लानत है भाई। कि आप बताओ कि गुलाम कादियानी अगर मुजरिम है तो ये क्या है, तो आपके साथ शर्म से झुक जाएंगे। तो मैंने कहा ये आप शर्म दे पुत्रा सानू 25 साल हो गए ने काम करदे, अज तक किसी कादियानी ने नहीं किया। तेनू ही आके कादियानी सुनांदे ने ए कहानियां। बंदा ला लितर ले ते पा तेनू लम्मे ले, तेन लग समझ जाए। पेज का नाम ना खत्म नबूवत न रखें, इसका नाम ईमानदारी आप लिखें एंटी कादियानी पेज। खत्म नबूवत आपको हक नहीं है सवाल देने किसी को, क्योंकि इसमें सवाए मेरे छोड़ू है, खुदा की कसम इतना बड़ा छोड़ू है, वड्डी वड्डी छोड़ेगा, पकड़ी भी नहीं जाती यार। यार इंजीनियर साहब देख ले कितनी देर करके आए हैं आप, 8 बजे का टाइम दिया। वालेकुम सलाम। मैं ना मोदी साहब, मैंने ग्रुप में उसी वक्त मैसेज किया था, मैं 9 सवा 9 के बाद फ्री होऊंगा। मेरा आज काम, मेरा मेरे बॉस पे बैठा हुआ। यार इंजीनियर कोई बंदा फिर दे जाया करे, मॉडरेटर, कोई मॉडरेटर तो होना चाहिए। आज पूरी दिहाड़ी जो है ना कोई भी यहाँ मॉडरेटर नहीं आया। वो मॉडरेटर बनाए हुए हैं आसफ को, उस्मान को, वो भी बेचारे कोई मसले में फंसे हैं शायद, वो भी नहीं आ सके। कोई मॉडरेटर तो होना चाहिए यार। मैंने तो ना 9 बजे से पहले वैसे मैसेज कर दिया था, बारह कंटिन्यू करेंगे आज की मुहादरत इंशाल्लाह, आइंदा कोशिश करेंगे। हाँ कोशिश करनी है कि टाइमो टाइम चलना है। हाँ जी अच्छा जी आगे सुने जी। प्लेटफॉर्म से तो सबको सच्चाई के साथ सच बताया जाता है। क्यों? क्योंकि नाम है भाभी, नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताबी। नाम है भाभी, नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। नाम है भाभी, नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। अच्छा ये जो इसका नारा है ना यार, यकीन मनियो ए नारा अल्लाह दी कसम है मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी दा लाया होया है। हवाला दियां कट के इंजीनियर बात करो जरा, मैं हवाला निकालूं जी। यार अच्छा ये जो कह रहे हैं ना सर जी के नाम है बाबी, नाम है बाबी, बाबी इससे बड़ा बाबी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यकीन कीजिए, इससे बड़ा बाबी आपको नहीं मिलेगा। ये बंदा एक अभी इससे वो शाहिद और बिलाल के जो पॉडकास्ट करता है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें इससे पूछा जाता है, इल्हाम के मुतालिक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा इल्हाम के मुतालिक सवाल पूछा जाता है तो वहां पर ये पता क्या क्लियर कट इसका मौकफ है। कहता है कि जी वो देखें ये जो इल्हाम का कोई जरा सा भी दावा है ना, कोई बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें, वो कुफर है। इल्हाम का जो भी काम कहना है ना, इल्हाम को जो भी मानता है, इल्हाम के ऊपर यकीन रखता है, वो कुफर है। ठीक है, ये इसकी वीडियो मौजूद है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही जनाब बारी आती है इसके बाबों की, मिसाल के तौर पर डॉक्टर कायल, उसके बाद मदूदी साहब वो भी इल्हाम के कायल हैं। गालबन वो क्या नाम है इनका, अलबरूनी क्या नाम है, जी अलबरूनी है ना, अलबरूनी साहब है, वो भी इल्हाम के कायल हैं, मदूदी। ठीक है, तो इनको ये कभी भी नहीं कहेगा कि ये काफिर हैं। इनको इसने कभी किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि जनाब का, बल्कि यहाँ तक कि इसकी बाबी होने का आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि एक वीडियो में ये कहता है कि जनाब ये एक वो कंसेप्ट बता रहा होता है कि जी डॉक्टर सरार साहब का एक कंसेप्ट था कि जनाब एक वक्त ऐसा आएगा कि जन्नत भी खत्म हो जाएगी, दोज़ख भी खत्म हो जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी। ठीक है, और कहता है कि ये भाई हम क्लियर कट बता दें कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये कुफर पर मबनी है। उसको ये खुद कुफर कह रहा होता है, वो बात बता के डॉक्टर सरार साहब का नाम लेके ना साथ में कहता है कि ये कुफर है। ठीक हो गया जी। अब कहना तो ये चाहिए था कि डॉक्टर सरार साहब मरे हैं, उन्होंने इसके ऊपर तौबा नहीं की, ठीक है, या इससे रुजू नहीं किया, उसके ऊपर कोई रुजू नहीं है, तो फिर
बजाय ये कहने के कि डॉक्टर सिरार साहब कुफर पे मरे हैं, कहता नहीं जी हम उसने जन रखते हैं उनके बारे में कि उन्होंने तौबा कर ली होगी। तो इससे बड़ा बाबी होने का इसका सबूत क्या है कि जनाब जब इसके अपने बाबों की बारी आए, ठीक है, तो नाम लेके कुफर बता के साथ में कहता है ये यार हवाला मिल गया यार, इतना मेहनत के बाद हवाला मिला है। ये है वो नारा, नाम है भाभी नाम है भाभी मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। सबसे पहले ये नारा मिर्ज़ा कादियानी ने लगाया था। रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 424। ये सारे नोट कर लो भाई, ये हवाला बड़ा कीमती है। स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो। ये देखें, कहता है कि अब मैं जनाब मौलवी साहब की खिदमत में अर्ज करता हूं कि जनाब मन आपका मुखातब एक मुद्दई इमामत है। मिर्जा जूनियर जेल में भी मुद्दई इमामत है। मिर्जा जूनियर जेल में के मानने वाले उसको इमाम कहते हैं। तो मिर्जा कादियानी भी कहता है कि मैं मुद्दई इमामत हूं, कि मैं इमाम हूं। अगरचे आप उसको काज़िब और मुफ्तरी जानते हैं, ठीक है, मिर्जा जूनियर जेल में भी ऐसे ही कहता है कि देखो ये सारे मुसलमान मुझे काज़िब और मुफ्तरी कहते हैं। बस उसके मुसलमात से उसे साकत करना लाजिम है। यानी मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरे मुसलमात जो हैं वो कुरान है, मेरा हदीस है। तो मिर्जा जूनियर जेल में भी कहता है कि मेरे मुसलमात कुरान और हदीस हैं। मुझे तुम लोगों ने अगर झूठा साबित करना है, मुझे साकत करना है, तो मेरे मुसलमात से मुझे साकित करो। तफसीर बरगानी और तबरानी और अबू नाइम वगैरह का हवाला देना या उनकी रवायात वगैरह मुसहहा पेश करना एक मुद्दई इमामत के बिलमुकाबल जिसका दावा हो। अच्छा, अब मिर्जा कादियानी को हवाले उलमा इकराम दे रहे थे, तफसीर बरगानी, तफसीर तबरी और अबू नाइम वगैरह के हवाले दे रहे थे। यही काम मिर्जा जूनियर जेल में कहता है कि बाबे ते शाही को नहीं, बाबों का बातें ना मेरे सामने पेश किया करो, मेरे सामने तो कुरान हदीस पेश करो। समझ आई कि नहीं? यही काम मिर्जा कादियानी करता था। आगे कहता है गैर मुसहहा पेश करना एक मुद्दई इमामत के बिल मुकाबल जिसका दावा हो कि मैं हकम होकर कुरान मजीद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत कायम करने के लिए दुनिया में आया हूं। यही काम मिर्जा जूनियर जेल में कहता है मैं कुरान और हदीस पेश करने के लिए दुनिया में मबूस हुआ हूं। उसकी वीडियो भी हमने कई दफा सुनाई है आपको। मिर्जा जूनियर जेल में कहता है मैं तो ये इसी काम के लिए मबूस हुआ। आगे कहता है कि अपने ऊपर जहालत का इल्जाम कायम करने से नतीजा खेज नहीं हो सकता। ये है वो मरकजी नारा, ना मैं भाभी ना मैं भाभी मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। हालांकि मिर्जा कादियानी भाभी था, अहले हदीस था, लेकिन वो कहता है वो ना हनफी है, ना शाफी, ना मालकी, ना हम्बली और ना जाफरी, ना मुकल्लिद, ना अहले हदीस। फिर आप हनफियों या शाफियों या मालकियों वगैरह के उलमा या मुफस्सिरीन के अकवाल पेश करके उसको मुल्जम क्यों कर सकते हैं? और सुन लिया जो मर्दयो, ओए मर्दयो गुलाम नबी नूरी आया है। अस्सलाम वालेकुम। और माइक ते ओपन कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम सलाम। हाँ भाई करो गल। जी सरकार, मैं बस हाजिरी के लिए सलाम हाजिर करने के लिए हाजिर हुआ था। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा चलो भाई वीडियो आगे सुनो। बल्कि यार की ना इंजीनियर है, वीडियो तू नहीं ओपन कर लेंदा? इंजीनियर कामरान जी मैं करता हूं सर, 1 मिनट दें मुझे। ए वीडियो का लिंक भेजा, मैं क्या लिंक भेजा, लिंक भेजांगा। जी मेरे पास है लिंक, आपने भेजा सर? अच्छा भेजा है तो बस ठीक है। नहीं वो कोई होर होना जे। अच्छा हाँ नहीं अज वाली वीडियो का लिंक भेज अज वाली वीडियो का शायद नहीं भेजिया। छोटा जा मैसेज करो व्हाट्सएप ते मैनू। व्हाट्सएप ते छोटा जा ए आ गई है भाई।
ਇਹ ਲਿੰਕ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਈ 3 ਮਿੰਟ 35 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। 3 ਮਿੰਟ 35 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक हो गया सर। एक ओके हाँ एक हाँ ठीक हो गया। अच्छा यार ये जी उस्ताद मोहतरम मैं कर्ज करना चाहूंगी कि रोजाना अपराध होती है तो आप जो मौजू होता है ना वो बता दिया करें ताकि इसकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और उस्ताद मोहतरम माजरत ये लोगों मुझे नहीं दिखाने आता तो ये माजरत जी अर्ज करनी थी किताब जो भी तो बस बता दिया करें ताकि उसकी सही तैयारी हो। हाँ इंशाल्लाह ताला। माइक जरा म्यूट करें, कोई शोर आ रहा है, शोर आ रहा है। इंजीनियर की तरफ से आ रहा है शायद, इंजीनियर तुम्हारी तरफ से है। हाँ अब बताएं। चलो बहरहाल तुम वीडियो शेयर करो और शुरू करो, पार्टी शुरू करो। ठीक हो गया। 3 मिनट 3.5 मिनट किया ना। चलो 3.5 मिनट से शुरू कर लो बस। ठीक सवाए मेरे किसी को हाथ नहीं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से तो सबको सच्चाई के साथ स्पीड थोड़ी सी ज्यादा कर लो ना, वो स्पीड ज्यादा कर ले भाई, स्पीड कोई कर ले 1.60 या 50। चलो नाम है सबक में नबूवत न रखें। तो इस प्लेटफॉर्म मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, तो वो फिर मुस्कुराने लग पड़ा। फिर मुझे कहने लगा हाँ जी मैं भी भाई रकबे गया था कादियानियों से डिबेट करने, तो उन्होंने वो सारी वो बुजुर्गों की बातें रखी जो आपकी 71 में बताई है, इंडिया पाकिस्तान के बुजुर्गों की। चलो एक ये देखें, ये ज्यादा तेज है मेरे ख्याल कारसम में थोड़ा सा स्लो करना है। 1:25 से करना। तो फिर मुस्कुराने लग पड़ा। फिर मुझे नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, तो वो फिर मुस्कुराने लग पड़ा। फिर मुझे कहने लगा हाँ जी मैं भी भाई रकबे गया था कादियानियों से डिबेट करने, तो उन्होंने वो सारी वो बुजुर्गों की बातें रखी जो आपकी 71 में बताई है, इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा। कहते मेरा तो अच्छा सब मजेदार की बात ये है कि कादियानियों के लिए इकट्ठा मवाद करके किसने रखा हुआ है, तो मुसलमानों के खिलाफ। वो खुद बता रहा है कि जनाब मेरी जो वीडियो है ना वो देखें आप, उसमें मुसलमानों के खिलाफ जितना भी आपको झूठा मूठा मवाद है ना वो मिल जाएगा। फलानी वीडियो के अंदर जाएं और वो वाला मसला देख लें, वो मैंने मसला डाला है। ठीक है जी। नहीं, इसके अलावा देखें ना अपना इंजीनियर साहब की, ये कहता है कि वो जो ये मुगल दौर की बात कर रहा है कि वो इंडिया पाकिस्तान उस दौर की ये बात कर रहा है। दूसरा ये कहता है रब्वा, हालांकि हर किसी को पता है कि रब्वा अभी नहीं है नाम, वो जनाब नगर उसका नाम है, लेकिन चूंकि ये एक काफिर मजहबी कादियानी है इसलिए उसको रब्वा कहता है, जिस तरह मजहबी कादियानी कहते हैं। मजहबी कादियानी काफिर जो है जेल में हो या कादियान वाले हो या लाहौर वाले। जी सही, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये बंदा अब देखें और क्या क्या रहा है, क्या ये अब इसकी कोई ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी जिसके अंदर इसने जनाब दलाइल के साथ उसको झूठा साबित करने की कोशिश की हो। और अगर बराए नाम यार एक मिनट, मेरा ना बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं जरा दूसरी साइड पे। एक सेकंड जमीर भाई बात कीजिएगा, आप ना आप बात करें। जी ये जो बात कह रहा है कि मैंने ही प्लेटफॉर्म पे खत्म नबूवत का काम किया और तो किसी ने किया ही नहीं, तो मैंने इल्मी इख्तिलाफ किया और तो किसी ने किया ही नहीं। तो इसने तो एक भी हवाले रूहानी उनकी कादियानियों की कुतुब से दिए ही नहीं। और क्या करीब का नाम है कि कादियान है, कादियानी नहीं मानते। तू खुद कादियानी क्यों नहीं मानते हैं? तू तो खुद बहुत बड़ा कादियानी पसे पर्दा,
मुनाफिक इंसान। तुमने तो डाटा मिजाज बिंडा न करते सारे फिरकों की दुकानें। आज बताओ ना मुझे कौन से फिरके की दुकान बंद हुई है, बताओ मुझे, जाहिल इंसान। अगर इतना ही तो जमाना तो आज सामने मुनाजरा कर आके उलमा से। मैं कहती हूँ उलमा को छोड़ो, हमसे मुनाजरा करने की अहलियत रख लो। अगर तो हमारे सामने टिक गया तो बात कर दो। जाहिल इंसान कहीं का, आती जाती खेनी और अकेडमी में 2-4 बंदे रख के तो लगा हुआ अपना कमाने। मिर्जे मसरूर ने से बैठाया हुआ है, पैसा दे रहा है, पैसे के लालच में अंधा हो गया। जाहिल इंसान। जी भाई। शुक्रिया। अच्छा जी, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो तरफ से चूक गया। तो यहाँ पे भी एक भाई आए थे जो कादियानी से रिवर्ट हुए हैं। अच्छा। ये वो उनके रिश्तेदारों में से हैं, बड़े बुजुर्गों। तो वो बताने लगे, कहते मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंस से दावत कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि अब मैं जिस फिरके में आया हूँ उस फिरके के बुजुर्ग भी यही कुछ ही करके गए हैं। कहते हैं वो कादियानी मुझे आपके क्लिप शेयर करवाते हैं। लो जी, लग गया जब पता। अच्छा, यहाँ पर अपना इंजीनियर साहब ये सिर्फ बात किया रिवर्ट हुए हैं। रिवर्ट वो होता है बंदा जो जनाबी अली ये जो होते हैं ना हमारे जो अहले किताब है यहूदी ईसाई, जब वो मुसलमान होते हैं तो हम उनको कहते हैं वो रिवर्ट हो गए ना, क्योंकि वो ज़रा अहले किताब है। अच्छा, यहाँ पर इसने हमें ये धोखा दिया है कि ये रिवर्ट हुए हैं। अच्छा कैनी साहब एक मिनट जरा रुकिएगा। को क्या मानता है कैनी साहब माजरत। अच्छा, ये यूट्यूब के ऊपर हसन रजा पीछे गया है या जमील अवान मौजूद है? जी उस्ताद जी मौजूद। यार यूट्यूब वाली वीडियो चला लो वो, फिर कोई एक बंदा। मैं चूंकि टिकटॉक छड़नी है तो फिर तुहानू आवाज कोनी जी होनी। कोई एक बंदा। हुरम भाई को 2 मोबाइल है ना? हुरम भाई मौजूद ने? कोई एक बंदा जेड़ा इत्थे यूट्यूब पे भी आ जाए और इधर भी रवे, या मतलब उन जी सुना दियो भावें। हमजा भाई मैं ला दो दूं मिनट ला यार हमजा, मैं निकलना है फिर। जी चलो जी, जारी रखें आप। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यासिन भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी। हमजा भाईजान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रसूल का एहसान अजीम, मेरे भाई की दुआएं। आप सुनाए खैरियत से हैं सब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह यासिन भाई, अल्लाह पाक का करम है। आप बताएं उस्मान भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एक हवाला चाहिए इमेजेंट्री बुक के साथ। जी उस्मान भाई बताएं अगर मेरे पास हुआ। वो जिसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है, काट कर इन्होंने अहमद लिखा हुआ है, वो अपना अकीदा महमूदिया के अंदर है या अपना वो दूसरी किताब के अंदर है? उस्मान भाई आप हमारे ग्रुप में ऐड है कि नहीं? नहीं मैं ऐड नहीं हूँ पे मैं। जमील भाई। हमजा भाई। जिनके बारे में इंजीनियर साहब कह रहे हैं, तो कहते मैं तो परेशान हो गया कि अब मैं क्या हो जाऊं। मैंने कहा आप मुस्लिम हो जाए, बस आप निकल जाए देवबंद बरेलवी अहले हदीस शिया के, इससे निकल के मुसलमान हो जाए। जब आप मसलकों से निकलेंगे फिर आपको किसी की बुरी बात जब पहुंचेगी ना तो आपको टेंशन कोई नहीं होगी। आप कहेंगे मैं कौन सा करता हूँ, मेरा क्या लेना देना। देखें मुनाजरे जब होते हैं ना तो पहली शर्त रखते हैं मैं पूछता हूँ। आप हमारे चलो तो हम बताएं आपके अब्बे ने भी ये काम किया। मेरे बारे में तो उन्होंने क्लिप चढ़ाए हैं कि इसका तो अब्बा ही कोई नहीं है। नहीं एक मिनट, वो तो हो सकता है पता ना हो हमजा भाई। ठीक है, ये तो आप अपने मुंह से कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो तो हम बताएं आपके अब्बे ने भी ये काम किया।
यार मेरी भी सुन लो, मेरी आवाज़ आ रही है कि ब्रेक हो रही है आवाज़? जी जी आ रही है आवाज़ जी। वो कलमातुल फसल में है या अकायद महमूदिया में लिखा हुआ है? कौन सा हवाला? वो जो कलमा चेंज किया हुआ है इन्होंने। थोड़ा सा हवाला बताएं। वो ला इलाहा इल्लल्लाह नकल कुफर कुफर मुबाशर, वो जो है ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह। देखना पड़ेगा हवाला, पीडीएफ में पड़ा होगा कहीं। अभी दोनों फ़ोन मसरूफ़ हैं। मुझे एक वो में बुक लाइव चाहिए पूरी वो। जी मैं सेंड कर देता हूँ, कलमा फसल भी सेंड कर देता हूँ, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक फ़ोन से लाइव में दूसरे पर नहीं हाँ हाँ, तो मिल जाएगा। नंबर है ना मेरा आपके पास? नहीं पर्सनल कर दे, मैं फ्री होके कर देता हूँ सेंड। चलें, वो हवाले वाली चाहिए जिसमें इन्होंने कलमा चेंज किया हुआ है, या कलमातुल फसल में है या अकायद महमूदिया में है? जी देख देते हैं, मिल जाएगा। हाँ जी, वो लाजमी कीजिएगा। मैं आपको पर्सनल पर नंबर सेंड करता हूँ। मैं ये वीडियो लगाने लगा। इसका तो कोई नहीं है। देखो सर मेरा सुन ले भाई, जमीर क्या नहीं साहब नीचे चले गए मलको। जी जी, अच्छा ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जी ये ना अपना कह रहा है मेरा भाई कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, ये तो पूरे का पूरा बड़े पर चला गया। वही ना, कह रहा है मेरा भाई कोई नहीं है। एग्जैक्टली यही अल्फाज मैं दोबारा सुनाता हूँ आपको। कह रहे हैं मेरे बारे में तो उन्होंने क्लिप चढ़ाए हुए हैं कि इसका तो अब्बा ही कोई नहीं है। सर मेरा अब्बा भी है, मेरी अम्मा भी है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी अलैहिस्सलाम मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। तो नबी की बीवियां मेरी माएँ हैं, नबी अलैहिस्सलाम मेरे रूहानी बाप है। आपके रूहानी बाप जो है ना, अब वो अंग्रेजों के जमाने के हैं। नवी गल सुन, जो बंदा कादियानियों को प्रोवाइड करे डिफेंस, जो बंदा कादियानियों के लिए ढाल बने, ठीक है, जो बंदा कादियानियत को प्रमोट करे, जो बंदा कादियानियों के तर्जुमे का दिफा करे, तो जिस दिन कादियानियों को सजा हो, जिस दिन कादियानियों के वो जो पलीत सानी का केस था, जिस दिन उसका फैसला आया था, उस दिन इस बंदे ने कहा था मैं बताता हूँ आपको कि मुसलमानों के किए हुए तराजम में कौन कौन सी गलतियां हैं। इस बगैरत ने 2 घंटे की स्ट्रीम की, मुसलमानों के मुख्तलिफ तराजम जो हैं, मुख्तलिफ मुकातिब फिक्र के मुख्तलिफ तराजम, उनके अंदर से गलतियां निकाली इस बंदे ने। एक इसको नहीं नजर आई तो वही तफसीर सगीर जो पलीत सानी जो है वो लोगों में तकसीम कर रहा था, और ये कहता है कि इनके जनाब वो जो है कनेक्शन है वो अंग्रेजों के साथ है। जो अंग्रेजों का पिट्ठू है वो तो मिर्ज़ा कादियानी है, और तू जो है उसका दिफा कर रहा है। अच्छा देखे ना, अस्सलाम वालेकुम भाई। बात की है। अच्छा भाई मेरे को एक बात तो क्लियर कर दो, मैंने क्या गुस्ताखी की थी यार? शाम के टाइम आपने मेरे को म्यूट कर दिया था, गुस्ताखी मैंने क्या की थी? और दूसरी बात ये कि मर्ज़ई कादियानी किताब काफरों की जितनी किताबें हैं ना वो शातमियत पर है। अभी लाइव चल रही है, बाद में आना। रुश्दी ने ये तफसीर सगीर बहुत बड़ी शातमियत की किताब है। इसी तरह तज़किरा बहुत किताबें हैं, बैन होना चाहिए। और मर्ज़ई जी कह रहा हूँ अभी लाइव चल रही है, बाद में आना। ओके ओके ठीक है सर। इसमें लिखा है कि ये काफिर है। सही बात है, ये पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। आप देखेंगे आपके बाप जो है वो मिलावट शुदा तो नहीं है, लेकिन हमारे बाप की तो गारंटी कुरान में आई है, मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा। तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेरा चले। अच्छा देखो, अब मजे की बात ये है कि अब ये डायरेक्टली हर किसी को, हम इसके बाप के बारे में बात करेंगे तो फिर ये कहेगा कि देखें जी ये मौलवी बदतमीज होते हैं, ठीक है। हालांकि अब ये बात क्या कर रहा है, अपनी बात आती है तो कुरान उठा लेता है, और दूसरों की बात कर रही है आपका अब्बा आपका अब्बा आपका अब्बा, ठीक है। बात देखो जरा इसकी, ठीक हो गया। तो सर अल्लाह के फजल से हमारे जो बाप है ना उनकी गारंटी नबी इस्लाम दे रहे हैं, तो ये अपने बुजुर्गों कहते हैं वो डिक्लेयर कराएं कि वो कौन है ताकि हम हवाला दे सके। तो नबी इस्लाम ने अगर इसी बुनियाद के हवाले देने होते तो आप क्या के जाते हैं मैं अपने बाप इतने बाबे छोड़ के जा रहा हूँ, आप मैं पुराना सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। तो जो नबी
मेरे लिए कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं इस फिक्र में क्यों पढ़ूं कि 14 साल में मेरे बाबे कौन कौन से हैं? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे इस चीज की जरूरत है कि मेरे बाबों ने जो मेरे तक दीन पहुंचाया है, क्या वो वैसा ही है जो किताबों में लिखा हुआ है? ये मेरा यूट्यूब पे क्लिप है, किताबों और बाबों में फर्क। अब ये पता क्या बताना चाहते हैं? ये कहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने आप तक ये किताबें पहुंचाई है ना, अब वो कोई बात इन किताबों के खिलाफ भी कर देना, आप बुजुर्गों को सही मान ले, किताबों को गलत माने। तो सर जो ये काम करे उसको क्या कहा जाता है दुनिया की लैंग्वेज में? मुनाफिक। कि जो तुम कह रहे हो वो खुद क्यों नहीं कर रहे? अगर एक आलिम दीन तर्जुमा करता है या का नअबुदु व इय्याका नस्तईन का, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, और वो या अली मदद साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो खुद कुरान पे अमल नहीं कर रहा। अच्छा कैसी चवल मारी है इस बंदे ने, देखो सी कैसी खच मारी है। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है? हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है, वो और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम से कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम से कम जो है ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम से कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद,